No, can you see this screen? Yes, sir. Okay, so we will start the session from the time. Uh, the end, we have done the end in the last session. So यहाँ पर okay, now motion under gravity. So we are going to discuss here. एक बार मैं थोड़ा सा जल्दी से एक क्विक रिवीजन आपको दे देता हूँ क्या क्या हमने किया था एग्जैक्टली. So उसका थोड़ा सा एक रिवीजन दे देते हैं. So I have discussed with you about the acceleration. So every year questions are coming through this in this topic, and we have discussed some of the questions which has come in your examination, right? Previous year questions. So this directly indicates that this topic is very important. Average acceleration is final minus initial velocity divided by time duration. The questions may come in this variety if question will ask. Now, instantaneous acceleration is the most important part of this accelerations because it is carrying a lot of integration and differential means calculus part. तो क्या होता है इसमें एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज डिवाइडेड बाय टाइम dv upon dt. So we can write this dv upon dt as ds upon dt. So acceleration can also be written as d2s divided by dt square. Now this acceleration is also we can write it v dv upon ds, right? This is also a format by which we can write. The question may come into two variations. First variation is if a displacement or a velocity is given and it is the function of time, and the second variation is displacement or velocity given in the function of position. Now if a displacement function is given, let's say, right, or velocity function is given and it is the function of time, let's say, so you have to differentiate to go from displacement to velocity, velocity to acceleration. And if acceleration function is given and you have to determine the velocity or displacements, you can integrate it by getting the to get the answer. Now the second type of question is the displacement or velocity is the function of position. As you move from, let's say, A to B, so the position is changing. As position changes, the velocity changes or the position itself changes, right? So the acceleration we can get from velocity to acceleration, we have to differentiate. If acceleration is given in the function of position, so we have to integrate to get the velocity and displacement. So I think ये आप लोगों से बन रहा होगा ना. इसके बाद ये क्वेश्चंस हमने एक ही वेरिएशन के, ये दो क्वेश्चन थे और ये एक दूसरे वेरिएशन को क्वेश्चन था, राइट? इसी से रिलेटेड कल हमने बहुत सारे डिस्कशन किए थे, कुछ क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर में आ चुके हैं हम लोगों ने डिस्कस किया था. उसके बाद मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो कि इजियर है, पीछे जो हमने पढ़ा था वो कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट. बट हियर आई एम डिस्कसिंग विद I have discussed with you motion under constant acceleration. So for the constant acceleration, these three equation of motions are valid, and we have concluded some of the things which are basic, very basic in nature. Now, so what I'm going to discuss today, motion under gravity. So it is pure vertical motion, right? So g is the gravitational acceleration that acts on the body whenever the body is in the air, right? अब यहाँ पे जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं तो एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं, ये एक एजम्पशन है हमारा. तो ये स्टार बना के आप लोगों को लिख लेना है हमेशा. एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड. नाउ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वैल्यू इज फिक्स्ड. सो यहाँ पे ए जहां जहां लिखा है वहां आप माइनस जी लिख सकते हैं. तो मैं यहाँ पे आपको चेंज नहीं करा रहा हूँ, इस इक्वेशन में चेंज नहीं ला रहा हूँ, बस आपको साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ. इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, सो यू वी initial velocity, displacement, and final velocity, these all positive, right? But gravitation is negative because it always acts in the vertically downward direction. So through this concept, what we have determined here, through this concept we have determined here. Suppose let's say there's an object or particle has thrown with u velocity. Now, it has reached to maximum height at, let's say, ta time, that is called time of ascent. Now we would like to determine the value of time of ascent. How we got it?
v equals to u plus at. V is the final velocity. At that peak height, maximum height, the velocity will be 0. So we have got this value, time of ascent. If you apply the same equation from this position, this is the initial position to this position. Okay, so the initial velocity will be u equals to 0 if you are calculating from top to bottom. So u equals to 0, v equals to, it is the velocity before hitting the ground, right? So the velocity will be same as the throwing velocity, upward direction में जिस velocity से आप throw करेंगे उसी velocity से नीचे आएगा. मैंने आपको बताया था कल भी कि जब ऑब्जेक्ट वैसे फेंकते हैं ऊपर की ओर, तो किसी भी लोकेशन में अगर आपसे वेलोसिटी पूछी जाए, तो लेट्स से यहाँ पे वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में लेट्स से है v1, लेट्स से एक एग्जांपल है, तो व्हेन इट विल कम टू द रिटर्न जर्नी एट द सेम हाइट, द वेलोसिटी विल बी v1 इन द अपोजिट डायरेक्शन. ये बात आप समझ चुके होंगे, राइट? तो सिमिलरली जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, सो द वेलोसिटी विल बी v इन द अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी u, क्योंकि u से ही आपने फेंका था तो वो वेलोसिटी सेम आपको मिलेगी. ये आई होप आप समझ पा रहे होंगे. नाउ ये बात हो गई हमारी. Time of ascent, time of descent, we have discussed these two things. Now we will add both of the times so that we can get the total time of flight. Okay, total of time of flight we have got through the equation. Now इसके बाद हमारा काम था कि maximum height achieve करना, कैसे निकलेगा? So v square equals to u square plus 2s. This is the formula. The final velocity will be 0 and u square initial velocity is there, so you will get the maximum height. इसमें दो important चीजें थी. मैक्सिमम हाइट के लिए आप जब भी वेलोसिटी लेंगे ना, तो आपको वर्टिकल डायरेक्शन की या फिर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी लेनी है, इसीलिए मैंने यू वाई लिख दिया है. सिमिलरली व्हेन यू आर राइटिंग द इक्वेशन 2u अपॉन g, तो आपको u किस डायरेक्शन की वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन की. ये दो बातें आपको आगे फॉर्मूले याद करने में हेल्प करेंगी, राइट? नाउ इससे रिलेटेड जो आगे का डिस्कशन हो सकता है उसको हम लोग करेंगे. ठीक है, अब जो तीसरी बात है, थर्ड बात है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. ठीक है, वैसे एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो एक नया ही क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं. ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा. वी विल टेक अ न्यू क्वेश्चन. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक डायग्राम में बना देता हूं. मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है यहाँ पे. दिस इज अ बिल्डिंग. बिल्डिंग की हाइट नहीं गिवन है. ठीक है, या फिर गिवन हो भी सकती है, कुछ भी केस बन सकते हैं. जस्ट आपको एक केस में बता रहा हूँ सो दैट आप इन सबको समझ सकें और एनालिसिस करना सीख सकें. ये ग्राउंड है, राइट? अब एक पत्थर है लेट से, और आप इसको थ्रो करने हैं ऊपर, यहाँ से बिल्डिंग की इस पोजीशन से, इस पोजीशन से आप एक थ्रो कर रहे हैं ऊपर की ओर, राइट? ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में. सो यू आर थ्रोइंग दिस पत्थर, स्टोन, इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी लेट से कैसी दी है, आप ले लो 10 मीटर पर सेकंड, ऐसा ले लेते हैं, या फिर और ज्यादा ले लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड. 20 अपने आप में बहुत बड़ा डेटा होता है वेलोसिटी वगैरह का. तो लेट से आपने वेलोसिटी ले ली 20 मीटर पर सेकंड, इससे आपने फेंक दिया ऊपर की ओर. अब क्या होने वाला है, ये ऊपर की ओर जाएगा. सबसे पहले ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके एक पीक अचीव करेगा. पीक अचीव करने के बाद, पीक अचीव करने के बाद ये नीचे आना चालू हो जाएगा. मैं डायरेक्शन में पाथ थोड़ा सा डिफरेंट बता रहा हूँ. सेकंड, ये लाइन सीधी नहीं आ रही, बट आप ये ऐसे समझ लो कि ऊपर से नीचे ही आएगा, ऐसे सीधा सीधा लाइन में आएगा, आप एक अपनी ही एक्सिस में आएगा. ये दो रास्ते बताने के लिए मैंने ऐसा बना दिया. अब आपसे पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन, ये इनिशियल स्पीड थी, मैंने दे दिया कि लेट नहीं है, ये दिया है क्वेश्चन में. टाइम टेकन to time taken to hit the ground by the object
इज टोटल टाइम आप लगा लो कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा 2 सेकंड, फिर आने में 2 सेकंड, और फिर यहाँ से मैं मान लेता हूँ 10 सेकंड मान लेता हूँ, 10 सेकंड नहीं, 5 सेकंड, 5 2 7 7 सेकंड ले लेते हैं, 7 seconds. So time taken to hit the ground by the object is 7 seconds. कह रहा है determine, पहला क्वेश्चन है determine the height of building. बताइए क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये जो बिल्डिंग की हाइट है वो क्या होने वाली है। सर मैं बताता हूँ। हाँ, ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाएगा और फिर वो जो बिल्डिंग के जहाँ टॉप है सर, टॉप से ऊपर जाके टॉप तक ही वापस आएगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ लो कि वहां से पत्थर को नीचे फेंक रहे, टॉप से नीचे फेंक रहे, तो फिर डिस्प्ले एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी लगा देंगे। यू दिया ठीक है, अपन को, -20 दिया, एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी 7 सेकंड दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक तरीका है। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक स्टार बना के एक लाइन लिख लेना, easiest solution is the best solution, easiest solution is the best solution, ये स्टार बना के एक लिख लो। सॉल्यूशन एक क्वेश्चन के बहुत सारे हो सकते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमें टाइम बचाना है मेन। कभी भी ऐसा केस आए, आप पहले दिमाग लगाओ कि आपका जो इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगे। आपके तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होने वाला है, बेसिकली u होता है इनिशियल, और v होता है फाइनल, t होता है टाइम, s होता है डिस्प्लेसमेंट। तो आप जो टाइम ड्यूरेशन लेते हो उसके हिसाब से u और v डिसाइड होते हैं। लेट से आपने u इसको लिया, v इसको लिया, तो इसके ड्यूरेशन टाइम यहाँ से यहाँ का आएगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ का आएगा। अब मैं लेने क्या वाला हूं, मैं वो टाइम लेने वाला हूं जब ये यहां से चला और यहाँ हिट किया, वो टोटल टाइम क्या गिवन है, 7 सेकेंड्स। ठीक है, टोटल टाइम क्या गिवन है, 7 सेकेंड्स। तो मेरी पूरी जर्नी कितनी है, स्टार्टिंग वाला पॉइंट ये रहा, तो मुझे 2 पॉइंट से लेना देना है। पहला पॉइंट कौन है, ये वाला 1 पॉइंट, और दूसरा पॉइंट लेना देना है मुझे, ये 2 पॉइंट है। मैं इन 2 पॉइंट्स के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने वाला हूँ, राइट। हाउ आई विल अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन। सो आप क्या बोलोगे, s इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। This is the simple formula, right? I will apply here. So I will get the answer. Okay. Now s is the displacement. So from 1 to 2, it's the displacement 1 to 2. Whatever the path it has followed, but what I am saying 1 to 2. The displacement is basically height of the building. Can you see this? Displacement is the height of building. Now u is the in the positive direction, in the vertically positive direction, it is plus 20. Time always positive, it is 7 plus half. Acceleration is minus, always negative, so minus 10. If nothing is mentioned, take always minus, take always 10. Now time is again 7 seconds, so it's a square. Can you calculate this value? Can you calculate? माइनस में आना चाहिए इसको, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है, माइनस में आना चाहिए इसको। So let me calculate it. 140 105 minus, it is 5 into 105 sir. 49. It is minus 105. Yes sir. Okay, so minus sign, what minus sign is saying, the displacement is in the negative direction, in the direction of minus y. Is it clear? So h is what, 105 of meter. This is what the height of this building. The second question is that the speed, the velocity. हेलो सर। Yes, सर ये 7 सेकंड दिया हुआ है, वो तो टोटल टाइम दिया हुआ है ना। हाँ, we are taking the total journey time. So 1 point से ऐसे करके 2. So we are taking the total time. So in the total t time, the displacement is what, 1 to 2. So the टोटल टाइम दिया हुआ है तो टोटल डिस्टेंस भी आएगा ना। no, we are saying s is the displacement, not the distance. This is very important. S is the displacement, not the distance. Take care this thing. Is it clear? v square बराबर v square plus 2ad वाला इक्वेशन लगाएंगे तो नहीं आएगा। We don't have actually v square value, velocity, final velocity we don't have, so we can use this one only. So हमें क्या करना है, जब भी हमारे दिमाग में समझ में ना आए कौन सी इक्वेशन लगेगी, so write all 3 equations and see the what are the given data are there.
उस गिवन डेटा के हिसाब से आप देख लो कि कौन सी इक्वेशन लगानी है। जैसे इसमें u दिया है, t दिया है, एक्सेलरेशन वी ऑलरेडी नो, so we can get the displacement. We cannot use directly v square equals to u square plus 2s because we don't have the velocity at point 2. Now question I am asking, the velocity of particle. एक्सक्यूज सर, Yes, सर इसमें टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी जो अपने पार्टिकल ने करते हैं तय करते की है? हैं वो भी तीसरा क्वेश्चन वही है मेरा। The velocity of particle, मैं सारी एनालिसिस करा दूंगा आपको ना, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, हिटिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड क्या होगा? कोई अंदेशा लगा सकता है? किसी को थोड़ा सा आइडिया है कैसे निकालेंगे? v square minus u square is equal to 2s. Exactly. So v square equals to u square plus 2as. So what time I am taking? I am taking time t. So after t time, the velocity is what? At point 2. So it is velocity is v square. So v square, u square is positive 20 square plus 20 because u is in the upward direction, plus 2. A is minus 10 into s is already given here minus 105. Always put everything in the with the डायरेक्शन के साथ ही सब रखना है, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है? 400 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? ये 210 तो 2100 ऐसा कुछ आएगा क्या? ऐसे ही आना चाहिए। तो क्या आ जाएगी? वी स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2500 एंड इट विल बी 50 मीटर पर सेकंड। क्या ये बात समझ पाए आप लोग? बहुत आसान था, है ना? इस बात को पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी हम लोग कर सकते हैं। मैं इसको अभी बता देता हूँ, वर्क डन में अगेन बताऊंगा। So what is the energy at this point? The particle has the energy of potential energy at the same time kinetic energy. So the initial kinetic plus potential equals to the kinetic energy here. So what I will write here, potential energy is mgh equals to kinetic energy is 1/2 mv square equals to, right? ये क्या हो जाएगा? mu square equals to 1/2 mv square. So from this also we can get the value. ठीक है ना? कैसे आ जाएगा? m तो सब कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा? इस 2 को यहाँ पे कर लो, इस 2 को, ठीक है ना, इसको 2 को एलसीएम लेके यहाँ कर दो तो क्या बन जाएगा? 2gh, या फिर 2 का मल्टीप्लाई करा दो दोनों तरफ, तो 2gh प्लस u स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर। कुछ ऐसे ही बन गया क्या? क्या कुछ ऐसे ही बन गया है? This is called conservation of energy. So I will discuss this conservation of energy when I will teach you work done. Is it clear to all of you? ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा। So this thing we can also write by conservation of energy. इसको पहले मिटा दें। सर, हाँ जी पूछिए। ये जो वेलोसिटी था जो निकला वो नीचे की तरफ जब जा रहा है वो नेगेटिव नहीं होगा अभी? वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा। एक्चुअली स्क्वायर रूट में आया ना तो प्लस माइनस होगा यहाँ पे। तो ये स्क्वायर रूट जब लगाएंगे, when we will remove the square root, so it will be plus minus. So the answer will be minus 50 meter per second basically, but minus sign is just showing the direction in the vertically downward. So by watching, by seeing, we can already determine the velocity is in the negative direction. And whenever the question will come, he will never mention, if until or unless the sign conventions are given in the question, he will never give the minus sign in the option, right? अब जब तक कि उसने साइन कन्वेंशन क्वेश्चन में नहीं दिया है कि ऊपर वाले को प्लस लो नीचे वाले को माइनस, तब तक वो -50 या फिर +50 ऐसा करके आंसर नहीं देगा। 50 पूछेगा कि वेलोसिटी कौन सी होगी, 4 ऑप्शन में आपको 50 लिखना है। बात क्लियर हुई? सर यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट लगाते तो 4 वो आता। टाइम ऑफ फ्लाइट इज ऑलरेडी गिवन, इट इज 7 सेकेंड्स। नहीं सर, अगर वैसे देखा जाए तो 4 आता। क्या 4 आता? अगर ऐसा दिया और हाँ उसने हाँ, पूछा आप कि देखो टाइम ऑफ फ्लाइट किस कंडीशन के लिए था। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से और इसी हाइट में गिरता है यहीं पे, तो फिर ये ऊपर जाने में 2 सेकंड, नीचे आने में 2 सेकंड, राइट? क्यों? u/2g, सॉरी 2u/g,
तो 2 u की वैल्यू 20 है, डिवाइड बाय g है 10 है, तो कितना आता? 4 सेकेंड आता। बट वो नीचे भी आ रहा है ना, इसके नीचे भी आ रहा है, तो वो 3 सेकेंड यहां तक लेगा, 2 सेकेंड यहां से जाने में लगेगा ऊपर, और अगेन 2 सेकेंड आने में लगेगा। टोटल टाइम क्या हो गया? 2 + 2 + 3। क्या ये बात पकड़ पाए मेरी? क्या ये बात समझ पाए सब लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं? द टोटल जर्नी टाइम इज गिवन 7 सेकेंड। नाउ 1 से लेके टॉप तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? u/g, हमने फॉर्मूला देखा था। तो 20/10 2 सेकेंड। फिर ऊपर से यहां से अगेन इसी हाइट तक आने में कितना टाइम लगेगा? अगेन 2 सेकेंड। सो 2 + 2 + 3, it is 7 seconds. It is given in the question. Now somebody is asking, sir, what is the height from 1 to here? What is the height of this particular? So it is called h max, u²/2g. You can directly write the equation. Can you see this? This value, this height will be this height will be u²/2g. Is it clear to all of you? U square means 20 square. It is 20 square divided by 2g means again 20. तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। क्या ये बात पकड़ पाए? क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? बिल्कुल आसान सी बात है। Is there any problem? Hello, are you there? नो सर। यस सर। अच्छा, अब आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस Sir. फ्रॉम, हाँ Distance traveled by the particle is total हाँ। is 55 meter. डिस्टेंस means- ट्रेवल्ड अब निकालते हैं, तीसरी बात निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस Sir, okay. डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा? आप बोलोगे सर टोटल पाथ की जर्नी। तो ये बताओ यहां से ऊपर जाने में कितना लगेगा, कितना मीटर है? 20 मीटर। तो ये 1 पॉइंट से टॉप जाने में 20 मीटर, टॉप पॉइंट से यहां आने में 20, तो कितना हो गया टोटल? 40। और फिर यहां से h ऐड कर दो, तो 105 ऐड करो, तो टोटल जर्नी कितना हो गया? 40 + 105। क्या ये बात समझ पाए? 20 + 20 + 105, so it is the total journey, that is distance traveled. So क्या हो जाएगा? ये 145 मीटर, it is the distance traveled. Is it clear to all of you? सर हम्म आपने बोला था कि जब 1D यूज कर रहे हैं अपन, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। नहीं, मैंने ये बोला था कि अगर 1 डायमेंशनल है और एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो उस तब होता है। इसमें अगर अच्छा। डायरेक्शन पलट रहे हो तो नहीं होगा। If you are moving in the same direction, if you are not altering the direction, then only this statement is valid. ठीक है, बहुत अच्छा आपने स्टेटमेंट पकड़ा था, बट आपको ये भी पकड़ना है कब। ओके यस सर। नाउ ये क्वेश्चन की एनालिसिस हो चुकी है। इसमें कोई और बात है जो आपको लगता है कि सर समझनी चाहिए? कुछ ऐसा लग रहा है? कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ बचा है इसमें। तो ये क्वेश्चन तो हम लोगों से बहुत आराम से बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं और लेना चाह रहा हूं, लेट मी टेक इट, 1 सेकेंड। यस, हाँ, कोई डाउट है किसी को? पूछ लो, मूव करें आगे फिर। एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको क्लास 11th के बच्चे पढ़ते हैं हालांकि, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहा है गेट। ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपने 11th का पढ़ा है कि किसका पढ़ा है। राइट, क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। राइट, क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि बॉल को आपने एक ड्रॉप किया है, यू हैव ड्रॉप्ड द बॉल। सो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, ड्रॉपिंग अ बॉल, ड्रॉपिंग अ बॉल, राइट, ड्रॉपिंग अ बॉल। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो कंसिडर कर लो। ठीक है, बिकॉज हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, इतना स्पेलिंग में फोकस नहीं हमारा। तो ड्रॉपिंग अ बॉल में क्या होगा कि आप एक बॉल को किसी h हाइट से ऐसे फेंक रहे हो, जस्ट ड्रॉप कर रहे हो। जब भी वर्ड आए ड्रॉपिंग, ड्रॉप वर्ड का क्या मतलब होता है? इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ड्रॉप वर्ड का मतलब हमेशा क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी एक्चुअली 0 नहीं होती। सर बस एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पिछले वाले हाँ क्वेश्चन में बस एक क्वेश्चन था। हाँ, पूछिए। चेक करिए ना सर। हाँ,
ठीक है सर, ऊपर से अपन ने बॉल यहाँ से फेंकी, ऊपर गई, नीचे आई, वो नीचे तक आ गई। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दी, फाइनल वेलोसिटी अपन ने 50 निकाल ली थी सर, ठीक है। अब ये यहाँ पर देता, अब ये पूछता कि इसका टोटल टाइम बताइए, जो आप 7 सेकंड दिया है ना। हाँ, तो ये अगर, हाँ तो इसको कैसे करते सर? वो तो ऑलरेडी दे के रखा है ना यहाँ पे। नहीं सर, मगर देता नहीं तो ये, मान लीजिए डेटा नहीं दिया, हाँ 7 सेकंड नहीं दिया, 20 मीटर तो पर आपको सेकंड। आपको कुछ ना कुछ और डेटा देना पड़ता है, एच हाइट या तो देना पड़ता, नहीं कुछ सर, ना उसने कुछ डेटा। फाइनल वेलोसिटी दी है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या v करोगे इक्वल टू u प्लस 80। हाँ, v इक्वल्स टू u प्लस 80 आ जाता। सर उसको 3 सेकंड आएगा यहाँ से लेकर हाइट के सेकंड पे, और फिर ऊपर का भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, वो पूछना वो कैसे करेंगे। v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगाने में 3 आ रहा है। चलिए देख हाँ। लेते हैं, है ना। चलो देख लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कभी। देखो आपने पूछा है जो, उसका जवाब दे लेते हैं। v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगाते हैं हम लोग। v की डायरेक्शन क्या है, नीचे साइड, तो क्या ले लेंगे, माइनस लेना पड़ेगा, क्या -50 लेंगे हम लोग। इक्वल्स टू u की डायरेक्शन ऊपर है तो क्या लेंगे, प्लस का 20, प्लस a की डायरेक्शन क्या है, -10 और t निकालो भला क्या आएगा, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, -70 और डिवाइड बाई -10 क्या आएगा, टाइम 7 सेकंड। आपने ये माइनस नहीं लिया क्या? सर ये जो माइनस से नीचे साइड, हाँ, पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है। हाँ, वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको देखनी है। पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा हो चाहे नीचे से ऊपर जा रहा हो, आपको वेलोसिटी देखनी है, क्या ऐसे वेलोसिटी होगी। हाँ बिल्कुल, वेलोसिटी हाँ। कैसे, डायरेक्शन जरूर हाँ, बताना है। तो नीचे फाइनल की वेलोसिटी तो डायरेक्शन, नीचे। हाँ तो ये हाँ सर, -50 होगी बेसिकली, -50। हाँ ठीक है सर, समझ गया। ठीक है ना, ओके सर, मीटर गॉट पर सेकंड। हाँ, ये बहुत अच्छी थैंक आपने यू। क्वेश्चन पूछ लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। क्योंकि ये अगर डाउट आपका रह जाता है ना कि माइनस लेना है प्लस लेना है, तो ये फिर दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैंने साइन कन्वेंशन बहुत केयरफुली शुरू में बताए हैं। और आपको हमेशा टाइम ड्यूरेशन जो आपने लिया है, जो चूज किया है टाइम ड्यूरेशन आपने, उसी के बीच में ही सारी इक्वेशन के सारे टर्म्स रखने हैं। इनिशियल का मतलब होता है जब टाइम चालू हुआ है, फाइनल का मतलब होता है टाइम जब खत्म हुआ है। अब वो टाइम आप कौन सा लेते हैं वो आपकी चॉइस है भाई। आप लेना चाहते हो मान लो यहां से यहां के बीच में 1 से लेके टॉप तक, तो टाइम अलग लिखोगे। 1 से लेके टॉप तक पहुंचना और फिर यहां तक आना, टाइम अलग लिखोगे। अब ये बताओ, 1 से चले ऐसे गए, टॉप में गए, फिर यहीं आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। 0। तो अगर आप इस जर्नी का टाइम लिखोगे तो s की वैल्यू 0 रखोगे। तो व्हेन यू विल अप्लाई दिस s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ h स्क्वायर, यू विल राइट अ 0 डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? बिल्कुल आसान सी चीज। तो आपको बस इनिशियल और फाइनल डिफाइन करना पड़ेगा आपका गिवन टाइम के हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो द नेक्स्ट इज व्हाट, ड्रॉपिंग अ बॉल मींस इनिशियल वेलोसिटी। अब इसमें अगर प्रिसाइज वर्ड यूज करूं ना, प्रिसाइज, तो क्या होता है प्रिसाइज वर्ड? ड्रॉपिंग अ बॉल का मतलब होता है द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर बॉल इज सेम as the velocity from where it has been dropped, from where velocity same as the velocity from where it has been dropped, it has been dropped। क्या ये बात पकड़ पाए क्या कह रहा हूं? जैसे, ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, है ना, जीरो वेलोसिटी नहीं होती ड्रॉपिंग में हमेशा, राइट। तो जैसे मान लो आप एक बिल्डिंग की टॉप हाइट से आप फेंक रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, आप बिल्डिंग से आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, तो बिल्डिंग तो रुकी हुई है, तो जहां से आप फेंक रहे हो उसकी ही वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी। जैसे ये बिल्डिंग से आप फेंक रहे हो इसको, तो इस बिल्डिंग की वेलोसिटी 0 है, तो इसलिए ये बॉल जो आप ड्रॉप करोगे, द बॉल विच यू विल ड्रॉप विल हैव द सेम वेलोसिटी एज द बिल्डिंग हैज। तो ये बिल्डिंग की चूंकि वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी u की 0 है, तो ये जो बॉल है इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी, 0। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक बलून है लेट्स से, और वो बलून क्या हो रहा है, वो ऐसे उड़ना चाह रहा है, उड़ ही रहा है बेसिकली ऊपर की ओर, राइट। हॉट एयर बलून है, और अब इस हॉट एयर बलून में नीचे साइड एक ट्रॉली लगी हुई है लेट्स से, और इस ट्रॉली में आप बैठे हैं। ये हॉट एयर बलून ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फिलहाल अभी जो जस्ट आपने देखा इंस्टेंटली
इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी थी लेट्स से 20 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन में। आपने एक यहाँ से स्टोन थ्रो किया, फेंका। ये स्टोन जब आप थ्रो करेंगे, बाहर फेंकेंगे, तो ये जो ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा होगा, ग्राउंड वाला जो ऑब्जर्वर होगा, ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर, ये ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को दिखेगा कि ये जो स्टोन जिसको आपने फेंका है ये भी ऊपर जा रहा है, और किस स्पीड वेलोसिटी से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड। क्या ये मेरी बात पकड़ पाए, क्या ये बात समझ पाए? तो जो वेलोसिटी बॉल की होगी या फिर स्टोन की होगी, सेम एज द वेलोसिटी वेयर फ्रॉम वेयर इट हैज बीन ड्रॉप्ड, जहां से फेंका गया है उसकी जो भी वेलोसिटी होगी, जो भी कंडीशन होगा, उसी कंडीशन को इनिशियली वो रिटेन करेगा। क्या ये बात मेरी समझ में आई? कितने लोग हैं जो इस पे एग्री कर रहे हैं, उनको बढ़िया समझ में आ गया? क्योंकि गेट है भाई साहब, गेट मान के चलता है कि 11th आपने बढ़िया पढ़ी होगी, आईआईटी की तैयारी आपने की होगी किसी जमाने में, इसलिए वो हो सकता है यहां से ना पूछे, बट यहां से पूछ ले इस रीजन से। तो वो क्या कहेगा, क्वेश्चन आपसे क्या कहेगा कि एक बलून है, वो बलून ऊपर की ओर जा रहा है, या फिर एक जेट है, जो भी है ऊपर की ओर जा रहा था, और आपने उससे एक स्टोन को ड्रॉप कराया। जब वो बलून ऊपर जा रहा है, as the time of ascent of the balloon, the velocity is u meter per second, whatever the value of u may be, right? And अब वो क्वेश्चन आगे पूछने लगेगा कि बलून मान लो लेट्स से कि ग्राउंड से हाइट कुछ दे रखा है, मान लो लेट्स से उसने ग्राउंड से हाइट बलून की फिलहाल जब ये कंडीशन थी तो लेट्स से यहाँ से दे रखा है, वो कितना दे रखा है, तो मान के चल रहा हूँ यहाँ पे कि ये 200 मीटर्स पर है। अब आपसे पूछेगा कि ये जो स्टोन है कितने टाइम के बाद जमीन में गिरेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये पत्थर और ऊपर कितना जाएगा, सेकंड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, जब ये पत्थर जमीन में गिरेगा और मान लो पत्थर का मास है 1 kg, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, और बहुत शानदार क्वेश्चन ये बनेंगे। क्या ये बात पकड़ पाए, क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, इसको मैं और करके बताऊं क्या आप समझ गए हैं? अगर करना हो तो बताओ फटाफट, तो तीनों में चीजें लिख देता हूँ, फिर करके दिखा। सर वो आपने दूसरा क्वेश्चन बोला ना कि पत्थर और कितने ऊपर जाएगा। हाँ चलो, इसको सब सर, सारे क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक्सक्यूज देखो, मी सर। हाँ हाँ आस्क। सर वो एक क्वेश्चन है कि यदि हमारा जैसे 20 मीटर प्रति सेकंड से इनिशियल वेलोसिटी से हमारा पत्थर जो है तो थ्रो हो रहा है ऊपर की ओर, या फिर हम लोगों का जो बैलून है जा रहा है, तो सॉरी पत्थर जो 20 मीटर प्रति सेकंड से थ्रो हो रहा है, तो जो मैक्सिमम हाइट रीच करेगा सर उस पॉइंट पे हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? ये कहानी पता है क्या बनी है? ये जो अभी कहानी है एग्जैक्टली ये एग्जैक्ट पिछली कहानी है। ये कहानी है, ऊपर की ओर आपने 20 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया है, यही कहानी है एग्जैक्टली ये वाली। सेम टू सेम कहानी तो है, अब सर बलून को हटा दो। ये सर वो जो प्रीवियस में भी था सर, उसमें भी जो हमारा मैक्सिमम हाइट रीच कर रहा है टॉप पे, तो वहां पास हमारे अगर वहां पास पूछता है कि जब हमारा मैक्सिमम हाइट पत्थर रीच कर रहा है तो वहां पास फाइनल कितनी वेलोसिटी हाइट हम लोग की होगी? क्या होगी? फाइनल नहीं वेलोसिटी नहीं हमेशा जीरो फाइन होती है। जब यस सर। मैक्सिमम हाइट पर डायरेक्शन बदलता है स्टोन या फिर ऑब्जेक्ट, और कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया में डायरेक्शन बदलेगा तो वो वेलोसिटी जीरो होगी, हमेशा जीरो होगी, हमेशा जीरो होगी। क्यों? क्योंकि आप ऊपर की ओर जा रहे हो तो प्लस है, और उससे यस आना है सर। नीचे की ओर माइनस में। तो आप नंबर लाइन में अगर प्लस से माइनस जाओगे तो बीच में जीरो तो होना ही पड़ेगा। क्या बात यस पकड़ पाए? ठीक है, ये ऐसी बात है। यस सर। बढ़िया क्वेश्चन था आपका। ठीक है, क्या ये आप इस वैरायटी का अगर क्वेश्चन आता है कर लेंगे? आपको बस इसको हटा देना है, इस बलून को अपनी जिंदगी से हटा देना है। आपको बस ये लगना चाहिए कि पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर थ्रो किया गया है, ऐसा आपको लगना चाहिए। उसके बाद वो ऊपर जाएगा, डी एक्सेलरेट होगा, धीरे 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 स्लो होगा। अब जैसे 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है। हाँ जी, पूछिए कुछ। जैसे आप इसे बोले हैं कि जो बैलून है वो 20 मीटर हाँ सेकंड से अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो सर वहां से जो स्टोन थ्रो करेंगे उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, वो कैसे सर होगा? सर वो समझ नहीं पा रहा। वो मैंने क्या बताया आपको, ये जो ग्राउंड में बैठा देख रहा है ना, ऑब्जर्वर है, इस ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को ये दिख रहा है कि ये सारा कुछ ऊपर जा रहा है, कितने से 20 सब जा रहा है सर वाई 20। नाम का भी प्राप्त। सॉरी, आई हैवंट। मैं ये कह रहा हूँ, लिसन टू मी, आपका पहले आप अपना म्यूट करो खुद को, क्योंकि आपकी आवाज बहुत वो हो रही है। अब आ रही है आवाज?
क्लियर है ना? चलिए, तो क्या है, ये बलून ऊपर जा रहा है, ये ग्राउंड वाले को ऐसा लगेगा कि इसके सारे पार्टिकल्स जो जो इसके अंदर भरा हुआ है, जो जो चीजें, सब कुछ 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ये पूरा का पूरा बलून। तो ये जो पत्थर है, जब आप थ्रो करोगे उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसकी वेलोसिटी इसको क्या दिखेगी? 20 मीटर पर सेकंड दिखेगी, ये ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड में है। ऐसा कहानी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हेलो सर। ठीक है, तो Yes, sir, got इनिशियल, it, sir. हाँ, इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो वेलोसिटी बलून की होगी, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा। इसका उल्टा भी हो सकता था, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फॉल हो रहा है और वो फॉलिंग के दौरान ही एक पत्थर को बाहर फेंक देता है, तो फिर वही कहानी, ये 20 ऊपर बनाने की जगह नीचे बनाना पड़ेगा। जिस वेलोसिटी से ही वो फॉल हो रहा है, जिस वेलोसिटी से वो फॉल हो रहा है, उसको नीचे करना पड़ेगा। बात खत्म। क्या बात समझ पाए आप लोग? बिल्कुल आसान सा काम है। तो बलून की कहानी बंद करके हम लोग क्या करेंगे, अब इस पत्थर की कहानी ऊपर ले जाएंगे, फिर ऐसे ड्रॉप कराएंगे और नीचे आ जाएगा। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल हम लोगों से बन जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों से बन जाएगा। अब आते हैं इस वाले में। हाँ जी, यस यस, आस्क। सर ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में बलून ट्रैवल कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल करता है हाँ, तो वेलोसिटी 0 ही होती ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ना ना ऐसा नहीं है। देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेट्स से बलून को ट्रेवल करा देते हैं। कार का एग्जांपल बेहतर रहेगा, बलून हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल कराना थोड़ा अजीब लगेगा। एक कार है, लेट्स से एग्जांपल मैं ले रहा हूं, और वो कार इस वेलोसिटी से जा रही है इधर, या फिर ट्रेन है लेट्स से, और इस तरफ जा रही है। लेट्स से ट्रेन जा रही है 100 मीटर पर सेकंड, जो कि बहुत ज्यादा वेलोसिटी होती है, किलोमीटर पर आवर में निकालोगे बहुत ज्यादा होगा। और इससे आपने एक खाने का पैकेट या फिर कुछ भी बाहर फेंका, और एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट करना है हमें। एयर रेजिस्टेंस 0 है, ये हमें हर एक क्वेश्चन में मानना है अभी फिलहाल। तो क्या होने वाला है, जो वेलोसिटी, वट एवर द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विल बी देयर, वही वेलोसिटी उस स्टोन की होगी इस डायरेक्शन में 100 मीटर पर सेकंड में, और ग्रेविटी उसमें नीचे mg हमेशा लगेगा, तो मोशन विल बी प्रोजेक्टाइल लाइक दिस, और ग्राउंड में ऐसे गिर जाएगा। क्या ये बात समझ पाए? तो अभी प्रोजेक्टाइल में सब डिस्कस करेंगे हम लोग। क्लियर? इज इट क्लियर? तो अभी मैं इस बात को यहाँ डिस्कस, पत्थर को सर ऐसे गिरा देंगे कि सर आगे की ओर थ्रो करेंगे? ऐसे ही आप ड्रॉप कर दो, बस छोड़ दो, तो ग्राउंड वाले को पता है क्या दिखेगा? ग्राउंड में जो है, आप चूंकि ट्रेन में बैठ के देख रहे हैं तो आपको लगेगा नीचे जा रहा है पत्थर, बट ग्राउंड वाले को ऐसा लगेगा कि जिस वेलोसिटी से ट्रेन चल रही थी, उसी वेलोसिटी से इंस्टेंटली तुरंत ये पत्थर भी आगे जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद चूंकि ग्रेविटी नीचे लग रहा है तो इसकी डायरेक्शन बदलते बदलते ग्राउंड वाले को लगेगा कुछ ये रास्ता फॉलो किया है। ये ऑब्जर्वर कौन है? ग्राउंड वालों को लगेगा ऐसा। क्या ये बात समझ पाए? ओके सर, ओके सर। ट्रेन के फ्रेम से अलग दिखेगा। ट्रेन के फ्रेम से क्या दिखेगा कि विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन द स्टोन हैज 0 वेलोसिटी, एंड उसको ट्रेन को लगेगा कि ऐसे गिर रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है। क्या ये बात पकड़ पाए? ऐसा ट्रेन को लगेगा। ट्रेन के फ्रेम से कहानी बिल्कुल अलग चलेगी। ठीक है, तो हम ट्रेन के फ्रेम से नहीं देखते फिलहाल, हम किस फ्रेम से देख रहे हैं? ग्राउंड के फ्रेम से देख रहे हैं। कहानियां थोड़ा सा तो ऐसा रहता है ना कि बस से, चलती बस से बताते तो अपन थोड़े थोड़े आगे चले जाते हैं। एग्जैक्टली तो जो आप जा रहे हो आगे, क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपके पास बस की वेलोसिटी है। एग्जैक्टली बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया है, मेरे पास ये दिमाग में भी था नहीं। क्या हो रहा है कि आप बस से जब चल रहे हैं तो बस की जो भी वट एवर द वेलोसिटी ऑफ बस विल बी देयर, द सेम वेलोसिटी विल यू विल कैरी। अब आप अचानक से तो रुक नहीं जाएंगे भाई, 0 वेलोसिटी अचानक से नहीं हो सकती, इंस्टेंटली नहीं हो सकती। डी एक्सेलरेशन इतना गजब का होगा अगर अचानक से आप कराओगे, इतना गजब का डी एक्सेलरेशन होगा, हम क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे इतना डी एक्सेलरेशन, हम फिसल जाएंगे जमीन में। क्योंकि जमीन में जो फ्रिक्शन है वो डी एक्सेलरेशन करा रहा है हमारा, और फ्रिक्शन है अगर हमारा इतना सफिशिएंट नहीं, हम फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे। ऊपर से हमारा जो अपर बॉडी है वो गिरने लगेगी, ऐसा हो जाएगा, हम आगे की ओर गिर जाएंगे, ऐसा कुछ होगा कहानी। ठीक है, तो इसलिए जो कहानी है वो बात को समझो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऊपर मैंने लिख दी है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ये लाइन आपका सहारा बनेगी। ठीक है, अब आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं जो मुद्दे की बात मैं करने वाला था। मैं पहले वाले एग्जाम्पल को रख रहा हूं आपके सामने। लेट्स, आपने एक कोई स्टोन लिया और उस स्टोन को ड्रॉप कराया, राइट? अगले वाले पेज में ले लेते हैं इसको। आपने एक स्टोन को क्या कराया? ड्रॉप कराया। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं सो दैट कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग हो सके। सो एक देयर इज एन स्टोन एंड यू हैव ड्रॉप्ड इट। हमने क्या करा है? ड्रॉप। जब मैं ड्रॉप कराने के बाद कह रहा हूं तो मैं ये बात ही नहीं कर रहा कि बलून में खड़ा हूं फिर कहां खड़ा हूं, तो मतलब मैं रेस्ट से ड्रॉप करा रहा हूं।
जो भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट है वहां से ड्रॉप करा रहा हूं, मींस इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि मैंने मेंशन किया ही नहीं कि मैं बलून में हूं कि कार चलती कार में हूं कि कहां हूं। जब मैंने कोई मेंशन नहीं किया है इट मींस मैं रेस्ट में हूं उस टाइम पे, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। अब क्वेश्चन मेरा ये कहना है, क्वेश्चन मेरा ये पूछना है कि हर एक सेकेंड में बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एवरी सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो मान लो पहले सेकेंड में टी इक्वल्स टू यहाँ 0 था, अच्छा अगले टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड में यहाँ आ जाएगा, लेट्स से टी इक्वल्स टू ये 1 सेकेंड की बात चल रही है, फिर अगले 1 सेकेंड में क्या सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कि थोड़ा ज्यादा चलेगा, ये मुझे बताओ, थोड़ा सा आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ। थोड़ा ज्यादा चलेगा, थोड़ा ज्यादा अगले चलेगा, अगले सेकंड में थोड़ा ज्यादा चलेगा, अगले और सेकंड में और थोड़ा ज्यादा चलेगा, अगले और सेकंड में थोड़ा सा और ज्यादा चलेगा, देन और अगले सेकंड में और ज्यादा चलेगा। सो इट्स डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग as the time increases, means every second the displacement is different, so t is equals to 4 second। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, रेशियो पूछ रहा है। तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, रेशियो ऑफ, थोड़ा इधर लिख देते हैं, यहाँ पे भी हमें जरूरत पड़ेगी इस स्पेस की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ईच सेकेंड, तो क्या करेंगे, पहले सेकंड में लेट्स से कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कुछ जो भी हो रहा है देख लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पे पहले सेकंड का ये डिस्प्लेसमेंट है, राइट, दूसरे सेकंड का इसके बाद का डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से चालू होता है और यहाँ तक खत्म होता है, ज्यादा है, ऑब्वियसली ज्यादा है। तीसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट इससे और ज्यादा है, ये देखो तीसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, चौथे सेकंड का और ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट, ये है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, व्हाट आई विल डू, आई विल डिटरमाइन द वैल्यू। आप मुझे बताइए पहले सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सो द वैल्यू विल बी s इक्वल्स टू, इसको s1 बोलेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ लेट से s1 है, यहाँ से यहाँ s2 है, यहाँ से यहाँ s3 है, यहाँ से यहाँ s4 है, तो हमें क्या चाहिए, s1 is to s2 is to s3 is to s4, ऐसे करके आप आगे भी निकाल सकते हो। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दैट आई हैव फार्मूला, राइट। अब एक सेकंड की बात चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो दिस वैल्यू विल बी 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज gt, सो g ले लेते हैं, माइनस साइन लिख देते हैं यहाँ पे gt, राइट, t की वैल्यू लिख दिया हमने 1 स्क्वायर, राइट। अगले सेकंड की बात करते हैं, तो मैं एक काम करता हूं, अगले सेकंड के लिखने के लिए मैं स्टार्टिंग से यहां से चलूंगा, स्टार्टिंग से यहां से चलूंगा, मेरी बात को अच्छे से समझना। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस डिस्प्लेसमेंट को कुछ नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दो, नहीं तो मत दो, चलो ऐसे लिख देते हैं। तो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आप बताओ, आप बोलोगे सर s इक्वल्स टू ut 0 हो जाएगा प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस g होगा, तो मैं यहाँ पे माइनस g ऑलरेडी लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माइनस g, तो माइनस gt स्क्वायर, g और t कितना है यहाँ पे, 1 सेकंड 2 सेकंड, 2 सेकंड हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ पाए। अब ये डिस्प्लेसमेंट s2 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये टोटल माइनस s1, क्या ये बात समझ पाए, तो ये टोटल माइनस s1 कितना है, तो ये बन जाएगा टोटल माइनस s1, करो भला कितना आ रहा है टोटल माइनस s1, तो ये टोटल माइनस s1 ये आएगा आई थिंक 1/2, करके देख लो 1/2 g इंटू 3t स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा, 1/2 g इंटू 3t स्क्वायर, करके देख लो यही आएगा, राइट। इसका ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू करो, तो 1/2 g तो बाहर आ जाएगा विद माइनस साइन, राइट। माइनस साइन का भी यहाँ पे मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिखा रहा, क्योंकि मोशन केवल एक डायरेक्शन में नीचे ही जा रहा है, तो माइनस लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क इतना नहीं पड़ता। और यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या बनेगा, कितना बनेगा, 2 2 जा 4 और 4 माइनस 1 3 बन जाएगा, 3t स्क्वायर। क्या ये बात पकड़ पाए, बिल्कुल पकड़ पाए। अच्छा आप फिर इसके बाद ये बताओ कि शुरू से लेके, स्टार्टिंग से लेके और यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्टार्टिंग से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, स्टार्टिंग से लेके और ये पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है। हाँ सर ये आपने क्या किया वो समझ नहीं आया, सेकंड जो लिखा था आपने, सी व्हाट आई एम सेइंग कि पहले आप डिस्प्लेसमेंट एक सेकंड का ये निकाल रहे हो, s1 डायरेक्ट ही आ गया, मुझे s2 चाहिए, सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हियर टू हियर, द एंटायर डिस्प्लेसमेंट
from here to here. So time limit I will take 2 seconds. So the displacement in 2 seconds is what? 1 by 2 g 2 square, right? So this is the displacement from initial point to this point, right? Now I want to get the displacement s2. So I will subtract this s value, means this value with this s1. So I will get s2. Is it clear? Is it clear to all of you? Is there any problem? अब देखिए s2 का वैल्यू t स्क्वायर में रहेगा। हाँ, S2 की वैल्यू कैसे आएगी? आप इस S से इसको माइनस करो, यहाँ माइनस आ जाएगा यार। माइनस में लगा नहीं रहा ना, मैं बोल रहा हूँ ना कि माइनस का कोई यहाँ एज सच इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ माइनस आ जाएगा बाहर, राइट? यहाँ भी माइनस था, कोई इशू नहीं है माइनस के साथ, राइट? अब ये आप बताओ पूरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा बताइए? S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, तो -1/2 g t स्क्वायर मींस 3 स्क्वायर। ये 3 सेकंड 3 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट ये है। अच्छा 2 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट ये था, तो क्या आप यहां से लेके यहां S3 की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं? इस वैल्यू से इस वैल्यू को घटा दो, तो इस वैल्यू से इस वैल्यू को अगर हम घटाएंगे, सो व्हाट आई विल गेट, तो हमें मिलेगा माइनस, क्या मिलेगा? दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, क्या मिलने वाला है? -1/2 g, और ये क्या बनेगा जी? 8 सर। नहीं 3 3 9 9 -4 5g, वेरी गुड। तो 5 इंटू टी स्क्वायर, 5 इंटू टी स्क्वायर, राइट? 5 इंटू टी स्क्वायर, या कि आप 5 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि 1/2 ए टी स्क्वायर है ना, तो टी क्यों लिखूंगा अननेसेसरी में? टी लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, 5 ही आएगा डायरेक्टली, टी क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे? ये मैं गलत कर रहा हूँ टी लिख के, राइट? तो टी लिखने की कोई जरूरत एज सच नहीं पड़ रही है। देयर इज नो इशू टू राइट द टी, यहाँ तक है, बस यही वैल्यू आ रही है ना। इसके बाद अगला भी हम लिख सकते हैं, बट मैं आगे अब नहीं लिख रहा। S4 की मुझे जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे पास आ गया है एक पैटर्न। देखो क्या बन रहा है सर, S4 इज -7/2 हाँ, जी। तो S4 भी अगर ऐसे ही निकालेंगे तो आएगा -1/2 g इंटू 7, ऐसा कुछ आएगा, राइट? कुछ ऐसा मिलने वाला है। अब देखिए S1 कितना था, ये वैल्यू थी, इसको डिवाइड करिए इससे, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा। भाई इसको डिवाइड करो ना, पहले वाले S1 को S2 से डिवाइड करो, तो 1/2 g कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा? 1/3, तो 1 is to 3 आया। अब इसको इससे डिवाइड करो, तो 1/2 g कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 5, तो 3/5, और जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? 7। क्या ऐसा लग रहा है कि एक ऑड नंबर का सीरीज टाइप की बन रही है? ऐसा कुछ समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल, ये हमारा एक निकल के आ गया कंक्लूजन। हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे कभी पूछ ले। तो इफ वी आर ड्रॉपिंग अ बॉल, so in every second the ratio of displacement is 1 3 5 7 9 and so on. Is it clear to all of you? सर मेरे को वो समझ नहीं आया 1/2 g3 कैसे आया? 3 कैसे आया? देखो इसको इससे घटाइए आप, तो ये 2 स्क्वायर कितना बनेगा? 4, और 1 स्क्वायर कितना बनेगा? 1, तो 4 - 1 कितना होगा? 3 हो जाएगा, और 1/2 g बाहर आ जाएगा। हाँ ठीक है सर, ये तो ठीक है। मगर यहाँ पर आपने s लिखा है, s इज इक्वल टू माइनस सेकंड रो में। अच्छा हाँ, ये वाला यहाँ पर हाँ s इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ। हाँ, तो 0 यहाँ पे हम 2 सेकंड की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं यहाँ तक की। हमारा इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो तभी डिस्प्लेसमेंट पूरा आएगा। ये पूरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एस इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे क्या वेलोसिटी है? 0 माइनस 1/2 जी की वैल्यू क्या है? माइनस, ठीक है। और टाइम कितना लिया यहाँ से यहाँ के लिए? 2 सेकंड, तो ये 2 स्क्वायर लिख दिया। क्लियर? यस सर। Okay, so it is a very easy question. Yes sir, if object travel distance with the help of the gravitational force, however the distance traveled by the object, this distance is we are say the displacement. No, it is not true, absolute true. क्या होगा अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर आप फेंक रहे हो, क्या होगा? कुछ देर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आना चालू होगा। सो अगर डायरेक्शन पलट रही है, डाउट ये है सर, सर डाउट ये है कि यदि हम कोई पत्थर को थ्रो किए एक हाइट से उसको थ्रो किए ऊपर की नीचे, और उसी हाइट तक ऊपर की ओर, तो सर तो उसी जिस हाइट से हम उसको थ्रो किए उसी हाइट तक आया, तो उसको हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल कहेंगे।
और यदि नहीं उससे नहीं हम नहीं लोग नहीं जिस नहीं साइड नहीं से नहीं फेंके नहीं थे नहीं उससे नहीं, और गलत नीचे गलत। जाता है। सुनो सुनो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहीं भी निकाल सकते हो। जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ से फेंका, ऊपर गया और नीचे आया, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ और डिस्टेंस ये पूरी जर्नी रही। अब आपके पास स्पेस है नीचे आने यस का, सर। तो डिस्टेंस होगा पूरी 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 जर्नी का एक्चुअल पाथ गिनो, और डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की हाइट, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट और यस सर, मैं डिस्टेंस भी यही की कह अगर रहा आप, हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की डेफिनेशन आप केयरफुली देखो, वही सारी चीजें छिपी हुई है। मैं जो यहाँ पे एक लाइन लिख सर। देता और हूँ ना, सर सिंगल लाइन, उस सिंगल लाइन का बहुत मतलब होता है उनका, आप गौर से उसको पढ़ा करो। हाँ पूछिए। यस सर, अभी जो इसमें हम लोग वो जो ड्रॉप कर रहे थे बॉल्स को, ओके तो इसमें तो अपन लोग कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, दैट्स व्हाई ये जो भी बॉल हमारा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ड्यू टू द ग्रेविटी, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके। यही है ओके सर, है ना। थैंक यू। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जैसे हमने यहाँ ईच सेकंड लिया है ना, हर सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, आप ईच 10 सेकंड ले लें, अगर ईच 10 सेकंड, अगर हर 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट देखें तब भी यही रेशियो होगा। अगर आप हर 20 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट देखें तब भी यही रेशियो होगा। अगर आप हर इक्वल टाइम इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट देखें तो यही होगा। क्या ये बात मेरी पकड़ में आ रही है, क्या मैं कह रहा हूं? जैसे यहाँ पे हमने एक एक सेकंड का डिस्प्लेसमेंट लिया है ना, अगर आप पहले 2 सेकंड का लें फिर बाद के 2 सेकंड का लें तब भी यही रेशियो आएगा। पहले 3 सेकंड का लें, बाद के 3 सेकंड का लें, यही रेशियो आएगा। क्या ये बात मेरी समझ में आ गई, पल्ले पड़ रही है? ये स्टेटमेंट्स डायरेक्टली आपके अगर क्वेश्चन आएंगे ना इससे रिलेटेड, डायरेक्टली यूज हो जाएगा। सो ये मैं होपफुली, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके उसमें दे दूंगा, शेयर कर दूंगा। अब मैं जो डिस्कस करने वाला सर हूं, अभी आप क्या बोले, एक बार और बोलिए ना। what I'm saying कि in every second, what I have discussed in the previous slide, in every second the displacement is, the ratio of displacement is 1:3:5:7:9 and so on. What I'm saying, in every 2 seconds the ratio will be same, in every 3 seconds the ratio of displacement will be same, in every 4 seconds the ratio of displacement will be same. What I'm saying, right? आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, बाद में आप कर सकते हैं, राइट, इत्मीनान से बैठ के। ये मैं सर कहना चाह अगर रहा था। बीच का हाँ, टाइम इक्वल नहीं है, जैसे अपन 2 सेकंड का भी ले रहे नहीं हैं, नहीं बीच में नहीं, 1 तो 1 फिर नहीं सेकंड होगा का, अगर 1 3 कर। नहीं यस सर, होगा, वही। ये रेशियो नहीं होगा, बस, है ना। सर एक बार फिर समझा दीजिए ओके सर। क्वेश्चन को। देखिए देखिए देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, ये स्टेटमेंट मैं कह रहा हूँ कि हर एक सेकंड नहीं, में, स्टेटमेंट नहीं सर, थोड़ा सा पूरा थोड़ा इसको समझा दीजिए। पूरा देखो, इनिशियली आपने एक बॉल को ड्रॉप कराया, ड्रॉप कराने पर पहले सेकंड में ये S1 डिस्प्लेसमेंट हुआ, दूसरे सेकंड में ऐसा, तीसरे सेकंड में ऐसा, चौथे सेकंड में ऐसा। सो ये हर एक सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है। क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं कि हर सेकंड का डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए उसका रेशियो क्या होगा। तो ये रेशियो क्या बनेगा, 1 3 5 7 9 ऐसे करके रेशियो बनेगा। मतलब अगर आप पहले सेकंड में 1 मीटर चल रहे हैं तो दूसरे के सेकंड में 3 मीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। इसको डिस्प्लेसमेंट आप बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चले जा रहे हैं ना, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है एक ही डायरेक्शन में। तो एक पहले अगर सेकंड में 1 मीटर चला तो नेक्स्ट सेकंड में 3 मीटर चलेंगे आप, फिर अगले सेकंड में 5 मीटर चलेंगे आप, फिर अगले सेकंड में 7 मीटर चलेंगे आप। क्या यह बात आप समझ पा रहे हैं? ये है क्लियर। नाउ वी विल मूव टू द ग्राफ। तो ग्राफ थ्योरी जो है, इससे रिलेटेड अभी तो क्वेश्चन नहीं आया, बट आ सकते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ग्राफ है। सो ग्राफ के लिए ग्राफ पेपर इसमें है क्या? इसको कर लेते हैं, ज्यादा सुटेबल रहेगा। ओके, सो वी विल सर स्टडी अबाउट दी, हाँ हाँ पूछिए। क्या 1D में सर एक्स एक्सेस में दो ऑब्जेक्ट क्रॉस कर रहे हैं, वैसा तो क्वेश्चन आया है क्या? हाँ क्वेश्चन आएगा, रिलेटिव मोशन से वो सॉल्व होगा, बताऊंगा रिलेटिव मोशन, ठीक है। कितना टाइम में क्रॉस कर जाएंगे एक दूसरे को, क्या कैसे कहानी उसमें बनेगी, बहुत अच्छी कहानियां बनती हैं, मैं रिलेटिव मोशन में वो कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि इस मोशन से अगर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एनालाइज करोगे ना, अगर मोशन इन 1D जितना भी स्टडी किया बहुत डिफिकल्ट जाएगा, तो रिलेटिव मोशन से बहुत आसान हो जाएगा, आपको लगेगा कुछ था ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने उसके लिए 30 मिनट्स एलोकेट किए हैं, वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ग्राफ में आते हैं हम लोग। दो टर्म होते हैं ग्राफ स्टडी करने के लिए। पहला टर्म कहलाता है, द फर्स्ट टर्म इज नोन एज स्लोप,
and the second term is called area, राइट। तो ग्राफ का स्लोप और ग्राफ का एरिया बहुत कुछ बताता है। ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं, तो आप बोलोगे सर इफ देयर इज अ फंक्शन y इज द फंक्शन ऑफ x, लेट्स से ये ऐसा कुछ है, तो अगर आप dy अपॉन dx लिख दें तो ये स्लोप कहलाता है। dy अपॉन dx क्या कहलाता है, स्लोप होता है। एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए इस फंक्शन को तो स्लोप आ जाता है। अच्छा, इस y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ऐसा कुछ होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, so the graphical representation of this particular function will be like this। आप x एक्सिस रखोगे, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसको आप x में रखोगे, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x में। और y एक्सिस जो है, इस y एक्सिस को बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल। ये y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ लिख देता हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैं यहाँ पे एक रैंडम कोई भी ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ, कुछ बिना सोचे समझे मैंने एक ग्राफ ऐसा कुछ प्लॉट कर दिया, रैंडम ग्राफ है ये मेरा। अब इसमें स्लोप क्या होगा, आप क्या करो, स्लोप जब भी आप बात करोगे स्लोप तो आपको बताना पड़ेगा किस पॉइंट पर, at which point slope। whenever you will ask, I will ask slope, so at which point। let's say कि आपने किसी x पर एक कोई पॉइंट एलोकेट किया कि x बराबर इस पॉइंट पे बताइए, तो मैं उस पॉइंट तक जाऊंगा पहले उस ग्राफ में, ये चला गया। इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx क्या होता है, किसी ग्राफ का टेंजेंट होता है, किसी पॉइंट पर टेंजेंट होता है। कि वर्ड टेंजेंट सब लोग जानते हैं क्या होता है, कोई ऐसा है जो टेंजेंट नहीं जानता। टेंजेंट क्या है मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ, रिकॉल कर देता हूँ, जिनको बिल्कुल नहीं आता तो उनके लिए टेंजेंट मैं बता देता हूँ। लेट्स से एक आपके पास सर्कल है, लेट्स से आपके पास ये सर्कल है, राइट। इस सर्कल का मैं कहूँ कि किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट निकालो, जैसे मैंने कहा कि इस पॉइंट पर टेंजेंट बताओ, तो क्या करना है इस पॉइंट पर टेंजेंट के लिए आपको, व्हाट यू विल डू टू फाइंड द टेंजेंट, आपको इस पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है रेडियस के परपेंडिकुलर। इस पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन आपको खींचनी है लाइक दिस। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट पर खींच दी जो बिल्कुल टच करती हुई जाएगी एक पॉइंट को, और रेडियस के परपेंडिकुलर लेना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, वो टेंजेंट कहलाएगी। ये टेंजेंट है बेसिकली, तो ऊपर वाली टेंजेंट है, राइट। दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है आपको, ये कहलाएगा टेंजेंट, राइट। अब चूंकि ये सर्कल है नहीं, ये एक मैंने कोई जनरल ग्राफ ले लिया है, तो इस पॉइंट का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कहीं, तो एक छोटी सी एक लाइन खींचूंगा, ऐसे छोटी सी लाइन खींचूंगा, और मैं इमेजिन करूंगा कि ये छोटी सी लाइन किसी सर्कल का पार्ट है, किसी एक सर्कल का पार्ट है, किसी एक सर्कल का यहाँ पार्ट है, कोई एक सर्कल होगा जिसका ये छोटा सा लाइन, ये पॉइंट का छोटा सा लाइन पार्ट है, उसका एक सेंटर ऐसे होगा, उस सेंटर से एक रेडियल लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, और फिर इस रेडियल लाइन की एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, वो कुछ ऐसी जाएगी, और यही मेरी कहलाएगी टेंजेंट। क्या ये बात पकड़ पा रहे हो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट, ये कहलाएगी टेंजेंट। अब ये टेंजेंट जो होता है, अगर आप डिटरमाइन करना चाहते हैं थ्रू मैथमेटिक्स, तो आपको जस्ट क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, इतना तामझाम ज्योमेट्री लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये कहलाएगा टेंजेंट। और ये टेंजेंट जो होता है यही स्लोप को डिनोट करता है, dy अपॉन dx, ये टेंजेंट की कुछ डायरेक्शन को कुछ कुछ बताता है। अभी मैं और डिटेल में आता हूँ कि स्लोप होता क्या है, ये बात पकड़ पाए, क्या ये बात आप थोड़ा सा समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, इसको फिर से रिवाइज करिएगा और क्लियर होगा। ये मैं डिटेल में आपको बता दिया, अब थोड़े छोटे छोटे एग्जांपल्स में ले रहा हूं आपको बताने के लिए, स्लोप को और अच्छे से बताने के लिए मैं स्लोप को और छोटे छोटे एग्जांपल्स ले रहा हूं। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि भाई एक स्ट्रेट लाइन है, लेट्स से कि देयर इज एन स्ट्रेट लाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ अ ग्राफ। तो लेट्स से कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन, दो लाइंस मैंने ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, स्ट्रेट लाइन जो होता है, स्ट्रेट लाइन, इसकी इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। क्या ये y फंक्शन ऑफ x है, क्या ऊपर जैसा मैंने बताया था कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल ये y देखिए फंक्शन ऑफ x है, तो ये स्ट्रेट लाइन के लिए स्पेशल यही इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन को हमेशा याद रखें आप, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, राइट। दिस इज द इक्वेशन फॉर द स्ट्रेट लाइन। तो इस स्ट्रेट लाइन को मैं ग्राफिकली यहाँ पे डिनोट करना चाहता हूँ, तो ये ग्राफ डिपेंड करेगा कि m की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, उस हिसाब से यहाँ पे जाएगा जी। यहाँ पे m जो कहलाता है, ये m कहलाता है स्लोप, m कहलाता है स्लोप,
ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो इस लाइन का स्लोप, और सी कहलाता है वाई इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट y कहलाता है इंटरसेप्ट, राइट। अब मैं यहाँ पे m की वैल्यू दो हो सकती है, या तो स्लोप हो सकता है पॉजिटिव, या तो स्लोप हो सकता है नेगेटिव। अब ये हमेशा याद रखना, स्लोप होता क्या है, मैं एक रैंडम लाइन बना रहा हूं, इसी में एक रैंडम लाइन, आई एम ड्राइंग रैंडम लाइन इन दिस ग्राफ, तो लेट्स से कि दिस इज अ रैंडम लाइन दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर, राइट। ये एक ग्राफ की लाइन है, ये यहाँ पे, हाँ जी पूछिए। सर स्लोप पॉजिटिव सर, स्लोप नेगेटिव सर, आई डोंट नो सर, मैं प्लीज बता रहा हूँ ना, रिपीट। मैं बता रहा हूँ, जस्ट अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का 0 0 से डिस्टेंस कहलाता है सी। ये जो पॉइंट है, इसका 0 0 से डिस्टेंस क्या कहलाता है, सी। ये सारा मैथ में भी डिस्कस होगा, बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा काम था, मैं बता देता हूँ। ये जो हाइट है, यही है सी, इसको क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। अभी इस केस में सी पॉजिटिव है, इस केस में सी कैसा है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस में हो आप। अगर ये सी नेगेटिव होगा तो आप ये पॉइंट कहां से चालू होगा, नीचे वाली एक्सिस से। क्या ये बात पकड़ पाए, क्या ये बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है कि ये नेगेटिव होता सी, अगर अगर ये सी नेगेटिव होता तो यही कहानी कहां से चालू होती, नीचे वाली एक्सिस से। क्या ये बात मेरी पकड़ पा रहे हो, यहां से चालू होती कहानी भाई, जैसे सी ऊपर गए उतना सी नीचे जाके फिर ऐसी लाइन बनानी पड़ती। क्या मेरी बात पकड़ पा रहे हैं आप। तो ये सी पर डिपेंड करता है कि ये ग्राफ ऐसे चल रहा है तो चालू कहां से होगा। अच्छा, दूसरी बात, स्लोप क्या होता है, इसी में बता रहे हैं। तो स्लोप स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट होता है, मतलब हर पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट द स्लोप विल बी सेम। तो स्लोप ऑफ, मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सेम एट एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट, ठीक है ना। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सेम एट एवरी पॉइंट। स्लोप क्या होता है, हमने अभी आपको और बताया था, टेंजेंट होता है, और स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट वो खुद लाइन होती है। फिर मेरी बात को सुनो, फॉर ए स्ट्रेट लाइन the tangent at any point, the tangent at any point is the line, straight line itself. क्या ये बात समझ में आई मेरी, itself, राइट। तो ये अब यहाँ पे कुछ कुछ बातें आपको थोड़ा सा समझ में आ रही होंगी, ऊपर वाले से रिलेट करो। टेंजेंट क्या था, इस पॉइंट का टेंजेंट ऐसे मैंने खींचा था, मैंने क्या बोला था, इस पर एक छोटी सी लाइन खींच के और एक इमेजिनरी सर्कल बनाओ, एक रेडियस बनाओ, उसका ये टेंजेंट कहलाएगा। यहाँ पे टेंजेंट क्या होगा, आप कोई भी पॉइंट पकड़ लो, इस पॉइंट को पकड़ लो, राइट, इसका टेंजेंट ये स्ट्रेट लाइन ही है, इस पॉइंट को पकड़ लो, इसका टेंजेंट स्ट्रेट लाइन ही है, इस पॉइंट को पकड़ लो, इसका टेंजेंट स्ट्रेट लाइन ही है। सो एवरी पॉइंट द टेंजेंट इज सेम, मींस द स्ट्रेट लाइन इटसेल्फ इज अ टेंजेंट। अब आपको करना क्या रहता है, स्लोप निकालने के लिए आपको उस टेंजेंट से, टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल से एंगल देखना पड़ता है। कैसे हॉरिजॉन्टल का एंगल देखेंगे, तो आप एक किसी भी पॉइंट पर, रैंडमली किसी भी पॉइंट पर मैं ले रहा हूं, जैसे इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट पर मैं क्या करने वाला हूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बताएगी, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बताएगी आपको, एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गई भाई, एक्स एक्सिस के पैरेलल ना है यार, बिल्कुल पैरेलल है। क्या बात पकड़ पा रहे हैं भाई, एक्स एक्सिस की हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। तो ये एक्स एक्सिस ही है बेसिकली। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एंगल देखो, ये थीटा एंगल है। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल देखो, ये थीटा एंगल है। ये जो टैन थीटा होता है, टैन थीटा, टैन थीटा, यही होता है स्लोप। अभी कुछ देर पहले मैंने कुछ और बात बोल दी थी, मैं क्या बोला था आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये होता है स्लोप। भाई साहब, यही वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर होती है, यही वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर होती है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू सेम होती है, इस बात को आपको बिल्कुल एक बक्से में बंद करके याद कर लेना है कि हॉरिजॉन्टल से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टेंजेंट एंगल बनाता है वही स्लोप कहलाता है। फिर से मैं यहाँ स्टेटमेंट इस लाइन का लिख देता हूं, आप इसको बार बार रिवाइज करिएगा, बहुत काम की चीजें। थीटा क्या है, एंगल मेड बाय टेंजेंट फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
इट इज द एंगल मेड बाय टेंजेंट फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थीटा ये है, और उसका टैन कहलाता है स्लोप। अब ये dy अपॉन dx के बराबर होता है। इस बात को मैं प्रूफ कर देता हूँ, इस बात को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कैसे होता है। अब जैसे मान लो लेट्स से कि यहाँ पे आपने एक छोटा सा dx लिया, मैं कहीं भी ले सकता हूँ dx, कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं यहाँ ले लेता हूँ dx। तो dx का मतलब एक छोटा सा x है, कैसा x है वो, छोटा सा x है। सो छोटा सा x मैंने ले लिया, ये छोटा सा x ले लिया, बिल्कुल इसको मैंने बड़ा दिखा रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, अदरवाइज वो आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो dx मैंने क्या ले लिया, एक छोटा सा ले लिया यहाँ पे, ठीक है ना। dx इतना छोटा होना चाहिए जो दिखना नहीं चाहिए, बट दिख रहा है बिकॉज मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। इतने dx में y कितना चेंज हुआ, इतने dx में y इतना चेंज हुआ, क्या ये बात हजम हो रही है? इतने dx में y कितना चेंज हुआ, तो आप बोलोगे सर इतना चेंज हुआ, वो dy होगा। इतने dx में इतना y चेंज, x इतना चेंज हुआ तो y इतना चेंज हुआ, dx dy मतलब चेंज इन x चेंज इन y। अब ये डिफरेंशियल अमाउंट की हम बात कर रहे हैं, बहुत छोटा सा dx ये होगा, तो ये भी कितना होगा, dy होगा। अब ये बताओ ये एंगल कितना बनेगा, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बन रहा है स्ट्रेट लाइन के लिए? बिल्कुल, कोई भी पॉइंट आप उठा लो, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनेगा, कोई भी पॉइंट उठा लो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल, तो यहाँ भी थीटा एंगल बनेगा। अब ये बताओ tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx को कुछ देर पहले मैंने क्या बोला था, स्लोप बोला था, अगर तुमको याद हो। ये बात है, क्या ये बात मेरी प्रूव हो गई? क्या ये बात बढ़िया समझ में आ चुकी है कि tan थीटा ही dy अपॉन dx होता है और स्लोप होता है? स्लोप कैसे निकालते हैं उसके लिए मैंने कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है। होपफुली मेरी ये बात आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रही होगी। सर थोड़ा डाउट हो रहा है। इतना समझ आ गया है कि स्ट्रेट लाइन है, वो खुद एक टेंजेंट इटसेल्फ एक्ट करती है, ठीक है, और एक्स एक्सेस उसका नॉर्मल हो गया है, समझ लिए। और अगर हो गया उसका नहीं, नॉर्मल हो नहीं है गया, भाई साहब, नहीं टेंजेंट का नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर होता है। हाँ सर सॉरी, परपेंडिकुलर होता है ये। ये जस्ट एक्स एक्सेस बोल रहा हूँ, एक्स एक्सेस से जो भी एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन बनेगा वो थीटा बनेगा, वो भी एक इटसेल्फ स्लोप है। हाँ वो tan थीटा उसका स्लोप है, और दिस थीटा इज सेम फॉर एवरी पॉइंट इन द लाइन, सो स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्ट्रेट लाइन विल बी सेम, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विल बी एट एवरी पॉइंट, आगे कुछ लिखा नहीं मैंने, इज सेम, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखा तो है मैंने, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सेम एट एवरी पॉइंट। तो क्यों सेम है? क्योंकि थीटा एंगल एक्स एक्सिस से हर जगह सेम है, तो tan थीटा भी सेम होगा हर जगह। क्या बात पकड़ पाए? हाँ, क्या डाउट है, आगे बोलो, डाउट पूछिए। सर आप जो ये थीटा इज इक्वल टू एंगल मेड बाय द टेंजेंट फ्रॉम द पॉजिटिव प्लस एक्सिस, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना। देखिए अभी कर तो दिया मैंने, ये टेंजेंट हो गया, स्ट्रेट लाइन का हर पॉइंट खुद में टेंजेंट है, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस ऐसे मैंने खींच दिया, उससे एंगल बना लो, tan थीटा निकलेगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगले पेज में बना देता हूँ। जैसे लेट्स से कि अगर आपसे मैं पूछूं कि एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। ये मैंने एक y एक्सिस बनाया, दिस इज द x एक्सिस, और यहां से मैंने ले लिया x, इसको ले लिया y, ठीक है। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, कि एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसा, राइट। मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, रैंडमली मैं कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब मैंने पूछा स्लोप क्या होगा इसका, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कुछ नहीं सर, ये खुद लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ टेंजेंट इटसेल्फ, एवरी पॉइंट द स्लोप विल बी सेम। ये हमने पकड़ लिया, ठीक है भाई, स्लोप इज कांस्टेंट, ये आपने समझ लिया। अब मैं चाहता हूं कि इसका हम क्या निकालें, स्लोप निकालें। तो मैं क्या करूंगा, किसी भी पॉइंट पर, लेट्स से इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा, हॉरिजॉन्टल क्या बताएगी, एक्स एक्सिस बताएगी मुझे, बिल्कुल। और इसका एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज उस कहां तक जाऊंगा मैं, उस लाइन में जाऊंगा। ये एंगल कौन सा होगा, थीटा, और इसका जो tan थीटा है यही क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। क्या ये बात पकड़ पाए? एंगल मैंने कैसे लिया, बिल्कुल ऐसे एंगल लिया। अच्छा, एक खास बात ये है कि अगर इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री पाई बाय 2, तो क्या होगा, tan थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या ये बात पता है आपको? और अगर इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री,
तो tan थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है तो ये स्लोप कैसा कहलाएगा? बताइए, नेगेटिव की पॉजिटिव? देख के बताओ। ये नेगेटिव स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। क्या ये बात समझ पाए? क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? मतलब ये जो स्लोप होगा वो -m होगा। क्या ये बात पकड़ पा रहे हो आप लोग? पक्का? ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, इफ थीटा इक्वल्स टू 0, तो tan 0 कितना होता है? 0 होता है। तो ये स्लोप 0 हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस की अगर पैरेलल कोई लाइन बनी है, लेट से एक्स एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन में बना देता हूं, ड्रॉ कर देता हूं, उसका स्लोप 0 कहलाएगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये पैरेलल लाइन, इसका स्लोप क्या होगा? 0 होगा। क्या बात समझ पा रहे हो मेरी? इस लाइन का स्लोप कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि इसका एक्स एक्सिस से एंगल कितना है? 0 है। तो थीटा 0, तो tan थीटा कितना होगा? tan 0 थीटा 0 हो जाएगा। तो स्लोप कैसा है? 0। बट इसके उलट, ये पहला केस मैंने बता दिया है, दूसरा केस आपको बता दिया है, तीसरा केस 0 को बता दिया, और चौथा केस मैं बता रहा हूँ। अगर थीटा की वैल्यू π/2 के एग्जैक्टली बराबर है तो tan 90 कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। तो स्लोप कैसा बनेगा? इनफाइनाइट बनेगा। और ये स्लोप इनफाइनाइट कब बनता है? मैं सारे केसेस बहुत ही डिटेल में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं कोई डाउट ना हो, मैकेनिक्स में कोई प्रॉब्लम ना जाए कहीं भी, राइट? मेरा पर्पस है आपको हाई क्वालिटी मटेरियल मिले और हर बच्चे को समझ में आए, इसलिए मैं बहुत बेसिक से ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर कोई लाइन, लेट से, ये बहुत छोटी बातें हैं, जिसने कभी प्रिपरेशन करी होगी ना 11th-12th में, तो वो तो कह रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं हमने। बट मेरा टारगेट हर बच्चा है, मैं चाहता हूँ हर बच्चे से बने, ऐसा ना हो कि 2-3 बच्चों से बने और बाकी लोग ऐसे रह जाए। तो थीटा की वैल्यू π/2 है, तो इसका स्लोप क्या कहलाएगा? ये स्लोप होगा इनफाइनाइट। क्या ये बात मेरी पकड़ पाए? सभी से बन जाएगा? बिल्कुल बन जाना चाहिए। कोई डाउट हो यहाँ तक पूछ लो भाई। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू मे आस्क। टेंजेंट ही इटसेल्फ में स्लोप एक्ट कर रहा है। हाँ, टेंजेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर और कोई दूसरे पॉइंट पे है तो डिवाइड उस टेंजेंट का डेरिवेटिव स्लोप है। हाँ, जैसे कोई इक्वेशन दी है, लेट्स से कोई एक इक्वेशन दी है, y इक्वल्स टू दे के रखा है एग्जांपल के लिए। आपके लिए एग्जांपल, एक सेकंड इनका पहले डाउट क्लियर कर देते हैं। जैसे दिया है 3x² + 5x, कह रहा है स्लोप निकालो, तो आप क्या कर दो? dy/dx, ये स्लोप होगा। तो क्या हो जाएगा? 6x + 5, दिस इज कॉल्ड स्लोप। क्या बात पकड़ पाए? पूछिए। सर इसका स्लोप 6 हो जाएगा ना? नहीं नहीं, अब x की वैल्यू रखोगे तो स्लोप मिलेगा। जैसे x = 0 पर क्या स्लोप होगा? 5 होगा। अच्छा, x = 1 पर क्या स्लोप होगा? 11 होगा। ऐसे करके, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है इसलिए ऐसा आ रहा है। हाँ, दिस इज ठीक नॉट है। अ अगर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन रहती तो फिर वो, देखो, mx + c होता, राइट? m कांस्टेंट, c कांस्टेंट, तो dy/dx क्या होता? वो m बन जाता है। x के डिफरेंशियल 1 होता है और c का डिफरेंशियल 0। तो क्या यही स्लोप था? मैंने बोला ना m स्लोप कहलाता है। ये सेकंड वाला क्या स्ट्रेट लाइन के लिए, और फर्स्ट वाला एक नॉर्मल रैंडम पॉइंट लाइन, पर। कोई भी, हाँ, यस कोई सर, भी समझ लाइन हो गया। सकती है, वो एक टेढ़ी बड़ी गॉट लाइन इट सर। टाइप। ठीक है, चलिए, और किसी का डाउट? हाँ सर ये तो थीटा 90 डिग्री में तो कोई स्लोप बन ही नहीं रहा सर। 90 डिग्री पे देखो ना, ये स्लोप इनफाइनाइट बन रहा है। tan 90 क्या होता है? इनफाइनाइट। स्लोप विल बी इनफाइनाइट। ऐसा लगेगा जस्ट एक क्लिफ है, चढ़ाई है, बिल्कुल ऊपर की ओर आप चढ़ रहे हो। सर तो स्लोप तो थीटा डिग्री में बनता है ना? नहीं नहीं भाई, इनफाइनाइट स्लोप है, थ्योरेटिकल है। ठीक है, जैसे आप एक चढ़ाई चढ़ रहे हो, बिल्कुल क्लिफ है, आपके घर की एक दीवार है, वो इनफाइनाइट स्लोप वाली दीवार है। हॉरिजॉन्टल फ्लोर है आपका, वो 0 डिग्री स्लोप का है। आपकी स्टेयर है, स्टेयर का स्लोप आप डिसाइड करते हो कितना है भाई, कितने एंगल में स्टेयर है आपकी। ठीक है सर मेरा डाउट ये है, हाँ सर 6x + 5 है सर, इसमें x = 0 पुट करने पर सर मेरा हाँ स्लोप 5 आ रहा। सर हाँ स्लोप 5 मीन सर 5 डिग्री है कि सर, ये समझ नहीं पा रहे हैं। tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू निकाल रहे हो, डिग्री में नहीं आएगा। tan थीटा किस में आएगा? वैल्यू आएगी कोई। हाँ, थीटा इसमें रेडियन में रखना आप लोग, थीटा डिग्री में भी रख लो, बट tan थीटा की वैल्यू तो आएगी ना कुछ। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री है, तो tan 30 फिक्स हो जाएगा ना। यस सर, क्या कहते हैं 78.6 जैसे मान लो tan मान लीजिए 45 आया तो स्लोप कितना हो गया? 1 हो गया। अगर मान लो tan 60 आ गया तो स्लोप √3 हो गया। इस टाइप से स्लोप निकल आता है, कोई वैल्यू आती है स्लोप।
सर ऐसे रेडियन वगैरह में नहीं आता। हाँ जी पूछिए। स्लोप को हम लोग इन द फॉर्म ऑफ द थीटा रिप्रेजेंट करते हैं कि टेन थीटा पूरा लिखते हैं? टेन थीटा स्लोप को टेन थीटा के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है सर हाँ, इसमें हाँ। x बराबर 0 पुट किया आपने। मैं कह रहा हूं कि एवरी पॉइंट द स्लोप विल बी डिफरेंट हियर। लेट्स से मैंने अभी समझाया तो था आपको, पिछले ही स्लाइड में मैंने समझाया था कि देखिए यहाँ पे ये वाला ग्राफ था, तो इसमें हर पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन बदल रही है। इस पॉइंट पे टेंजेंट इमेजिन करो किधर होगा, इमेजिन करो कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ टेंजेंट होगा, लग रहा है ना ऐसा, बस टच करते हुए एक लाइन जानी चाहिए उस पॉइंट से, ये टेंजेंट होगा। अब इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस से आप देखो, एक्स एक्सिस ड्रॉ करा, ये ड्रॉ किया, आप इससे एंटी क्लॉकवाइज में एंगल देखो, तो ये एंगल है, ये थीटा, और यहां एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, तो एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे ऐसे ओवरलैप टाइप का होगा, छोटा सा थीटा बनेगा। क्या थीटा बदल रहे हैं? बिल्कुल बदल रहे हैं। इस पॉइंट का टेंजेंट देखो, इस पॉइंट का टेंजेंट कुछ ऐसा जाएगा, बिल्कुल टच करके जाना चाहिए साइड से, ये टच करके गया, ये टेंजेंट बनेगा इस पॉइंट का। इस पॉइंट पर मुझे स्लोप चाहिए, तो क्या करूंगा, एक एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा और यहां से थीटा एंगल देखूंगा हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज। ये सारे एंगल्स क्या अलग होंगे क्या? एवरी पॉइंट द टेंजेंट orientation is different, and as per the orientation of tangent the angle from horizontal x positive axis in anti-clockwise will be different. So the slope of every point of this curved line is different, but in case of straight line every point slope is same. क्या ये बात मेरी पकड़ में आ रही है? मैं बार बार वही बात इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल स्लोप नाम की चीज क्लियर हो जाए, सो दैट आपके मैथ में भी काम में आए और सारे सब्जेक्ट में काम में आए। ग्राफ जब आप देखो तो आपको स्लोप दिखने चाहिए। क्या ये बात मेरी पकड़ में आ रही है? ये x बराबर 0 का आंसर क्यों इतना dy by dx बराबर dy by dx जो है tan थीटा उसको 0 पुट करते थे हम, इक्वल टू 0 रखते थे। अगर स्लोप 0 करना है, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, चलो बढ़िया क्वेश्चन है तुम्हारा, तो ले लेते हैं क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। जैसे कि इसने कहा कि भाई dy अपॉन dx 0 कर दीजिए, मतलब स्लोप 0 है, ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल। अब वो स्लोप 0 कहाँ होगा देख लेते हैं। जैसे मान लो एक मैं रैंडम ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, तो लेट्स से कि आई हैव ड्रॉन अ ग्राफ लाइक दिस, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, बात सही है। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो भला, सबसे टॉप वाले में कैसा जाएगा टेंजेंट? बिल्कुल टच करते हुए जाना चाहिए इस टॉप पॉइंट को, तो क्या हॉरिजॉन्टल बनेगा? हाँ, क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बनेगी। इसका एक्स एक्सिस एंगल जरा बताओ भला क्या होगा? थीटा की वैल्यू 0 होगी, और tan थीटा कितना होगा? 0 होगा, तो स्लोप कितना होगा? 0 होगा। तो dy अपॉन dx हम कब ये 0 करते हैं? जब हमें स्लोप 0 करना होता है, तब हम dy अपॉन dx करते हैं, फिर इक्वल्स टू कर देते हैं 0, तो x की वैल्यू आ जाती है। मींस इस x पर बेसिकली इस x पर स्लोप 0 है, इसके लिए हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। जहां स्लोप 0 हो उस लोकेशन को बताओ, उस लोकेशन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। क्या ये बात मेरी समझ पाई? मैं कॉन्सेप्ट बताने पे अभी फोकस कर रहा हूँ, क्वेश्चंस में भी आएंगे हम आगे चलकर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ सर इन केस थीटा इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन सर लेते हैं, तो सर उस कंडीशन में उसको क्या बोल देंगे सर? नहीं, वो कुछ नहीं कहलाएगा, इट इज नॉट डिफाइंड। स्लोप इज ओनली डिफाइंड फॉर द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज के लिए कुछ नहीं बोलेंगे हम लोग। यस सर, गॉट इट। ठीक है, हमारे डेफिनेशन ही ऐसे मैथमेटिशियंस ने बनाया है। ठीक है, तो आगे बढ़ें क्या? सर इसमें जो स्लोप है अपने में dy by dx, तो सर इसमें जो पूरी स्लोप तो 6x + 5 होगी ना टोटल, प्लस जिसे 6x + 5 it is slope, but the slope is variable. As you change x, the slope dy upon dx will change. Are you getting my point? As you change x, the dy upon dx will change, means slope change. But in this case slope is constant. A straight line, for the straight line slope is constant. तो आपको क्या करना है? Just you have to draw the tangent, measure the angle from positive x axis, right, and you can get the slope. अभी मैं आगे चल के एग्जांपल्स बताऊंगा बहुत सारे, तो आपको और क्लैरिटी आएगी। मैं अगले पेज में आ रहा हूं और मैं अब थोड़ा सा ग्राफ्स की बात करूंगा। जो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। और मैं हमेशा ये मानता हूं कि जब आप एक कोई टॉपिक है किसी एक सब्जेक्ट में पढ़ते हो, अगर उसका फंडामेंटल ठीक हो गया तो आपके दूसरे सब्जेक्ट में हेल्प करता है। ये मैं हमेशा बिलीव करता हूँ। मैं हॉलिस्टिक सोचता हूँ, कभी
एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर नहीं सोचता। जैसे ये ग्राफ है, अब आपने ग्राफ हमेशा अपने पूरे इंजीनियरिंग में यूज करे होंगे, स्लोप आपने कई बार यूज किया होगा, राइट? आप खूब वर्ड यूज करोगे, स्लोप 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 स्लोप, और वो स्लोप आप यहाँ का क्लियर हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली वहां हेल्प करेगा दूसरे टॉपिक्स में। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कहाँ है आपके माइनिंग में इसका यूज, बट मैं ये गारंटी देता हूँ बिना स्लोप वर्ड के हमारा बिना मैथमेटिक्स यूज करे हुए इंजीनियरिंग नहीं हो सकती। और इंजीनियरिंग में अगर मैथमेटिक्स यूज आ रही है तो स्लोप वगैरह ग्राफ तो 100% होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग एरिया की। एरिया क्या होता है बेसिकली, एरिया की हम चर्चा करने वाले हैं। द एरिया सर इसमें जो ग्रेडियंट निकालते हैं ना, हाँ हाँ एग्जैक्टली, ग्रेडियंट स्लोप ही होता है, ग्रेडियंट स्लोप ही होता है। तो एरिया की मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। लेट्स से कोई भी एक ग्राफ दिया है, मैं रैंडम ग्राफ ले रहा हूं, मैं कोई एक स्पेसिफिक एग्जांपल का ग्राफ नहीं ले रहा, सो दैट आपको जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट मिले, ऐसे कोई क्वेश्चन वाइज कॉन्सेप्ट ना मिले। फिर हम क्वेश्चन कुछ सॉल्व करके और उसको देख भी लेंगे कि आखिर सॉल्व कैसे करना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक मैं कोई भी एक जनरल ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ रैंडमली, मैं अपने मन से ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ कुछ ऐसा। ये अब मैंने कहा आई एम आस्किंग टू यू कि डिटरमाइन द एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व। एक काम करते हैं, पहले एग्जांपल आसान सा ले लेते हैं सो दैट आप निकाल लो आसानी से, फिर बताता हूँ। मैंने एग्जांपल ले रखा है, लेट्स से ये वाला। यहाँ से चालू होता है ग्राफ ऐसे, फिर ऐसे जाता है, ठीक है ना, और हाँ बस यही टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ जो हाइट ये गया है मैक्सिमम, इस हाइट की वैल्यू मैं ले लेता हूँ कोई भी ऐसे 20 ले लेता हूँ। लेट्स से 20 क्या यूनिट है, कैसे है, आप इसको थोड़ा सा नजरअंदाज करिए। ये 20 है। वर्टिकली ये यहाँ से नीचे कैसे रख रहे हैं, तो ये मान लो लेट्स से 2 है और ये 4 है, कोऑर्डिनेट है लेट्स से, है ना। अब इसमें मैं भी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज डालूंगा कुछ देर में। आपको कह रहा हूं कि एरिया अंडर दिस कर्व क्या होगा बताओ, तो आप बोलोगे सर ये वाला एरिया होगा, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व। क्या ये बात समझ पाए? क्या निकालोगे? तो बेस कितना है 2, हाइट कितनी है इसकी 20, 2 × 20 डिवाइड बाई 2, ये ट्रायंगल का एरिया होगा, प्लस ये वाला एरिया क्या होगा 2 और 4 का डिफरेंस मतलब 2, और हाइट कितनी है 20, तो क्या हो जाएगा टोटल एरिया, आप बताओगे 20 और 40 60 हो जाएगा। क्या ये बात समझ पाए? इसकी जो भी यूनिट होगी इनटू इसकी जो भी यूनिट होगी, ठीक है ना। इसकी y की यूनिट कुछ होगी, यूनिट ऑफ y इनटू यूनिट ऑफ x लिख दूं, इनटू यूनिट ऑफ y इनटू यूनिट ऑफ x। क्या ये बात समझ पाए? क्या ये मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो रही है आप लोगों को? किसी को डाउट हो तो पूछो भाई, नहीं है डाउट, है ना। चलो अगला एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल मेरा ये है सर वो यूनिट ऑफ y और यूनिट ऑफ x, भाई y और x को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, यही ना कर रहे हो, x और y को मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो जो आंसर आएगा उसमें y की यूनिट लिखोगे और x की यूनिट का मल्टीप्लाई कराओगे। मान लो ये मीटर में है y की यूनिट और x की मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर बनेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, दूसरे एग्जांपल में मैं ले रहा हूं लेट्स से कि यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। अभी जो पहला एग्जांपल लिया था ऐसा कुछ ले रहा है, ये कोई भी रैंडम है, और इस y इसका ग्राफ एक्चुअली मैंने दे रखा है, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x ऐसे करके दे रखा है। ये ग्राफ जो फॉलो कर रहा है, ये जो लाइन इक्वेशन फॉलो कर रही है, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x फॉलो कर रही है। कोई भी फंक्शन हो सकता है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट समझ गया होगा कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऐसे कुछ भी फॉलो कर सकता है, राइट, एक्स क्यूब प्लस 3 ऐसे कुछ भी फॉलो कर सकता है स्ट्रेट लाइन को छोड़कर। अब मैं कह रहा हूं कि एरिया अंडर द कर्व निकालो, एरिया अंडर द कर्व। अब बिटवीन x इक्वल्स टू, यहां देना पड़ेगा मुझे, x इक्वल्स टू यहां से लेके इसका नाम दे देते हैं x इनिशियल, और यहाँ दे देते हैं मान लो x फाइनल। इसके बीच में वो कह रहा है कि एरिया निकाल दो, x फाइनल बिटवीन x इक्वल्स टू x इनिशियल टू x इक्वल्स टू x फाइनल। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया, तो इसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन टूल यूज करेंगे। वेरी गुड, ये जिनसे आता है तो उनके लिए तो हलवा है बिल्कुल। इंटीग्रेशन टूल होगा, इंटीग्रेशन
टूल, राइट। अब ये इंटीग्रेशन टूल ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते थे, बट हम क्यों, मैंने अभी अब आपको बताया, स्टार बना के लिखाया था, इजिएस्ट सोल्यूशन है द बेस्ट सोल्यूशन। इसका तो एरिया हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकालने में प्रॉब्लम है, हमें चाहिए ये वाला एरिया पूरा। क्या करेंगे, एक छोटी सी स्ट्रिप बनाएंगे। कैसी स्ट्रिप होगी, वर्टिकल स्ट्रिप होगी, रेड कलर में बता देता हूँ आपको, रेड नहीं ब्लू कर देते हैं। ये एक वर्टिकल स्ट्रिप लूंगा मैं। कैसी स्ट्रिप होगी, dx लेंथ की स्ट्रिप होगी। ये जो x एक्सिस है, इसमें स्ट्रिप की लेंथ क्या होगी, dx होगी, ये होगी dx, है ना। dx लेंथ की एक छोटी सी स्ट्रिप लेंगे, राइट। और उसके बाद ये x एक्सिस, ठीक है। और y एक्सिस में ये y हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट इसकी y होगी, हाइट इसकी क्या होगी, यहाँ से यहाँ ऊंचाई कितनी होगी, y होगी। y इंटू डी क्या एरिया होगा, एरिया, डिफरेंशियल एरिया क्या होगा, डिफरेंशियल एरिया क्या होगा, ये छोटा सा ये वाला एरिया क्या होगा, ये डिफरेंशियल एरिया है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल एरिया। ये डिफरेंशियल एरिया क्या होगा, डिफरेंशियल एरिया, आप बोलोगे सर डिफरेंशियल एरिया है y इंटू डी एक्स, मुझे टोटल एरिया चाहिए, टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या होगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब ऐसे छोटे 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 एरिया यहां से चलाने पड़ेंगे, छोटे 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 ऐसे वर्टिकली स्लाइस कट करो, और कितने स्लाइस, इनफाइनाइट स्लाइस कट करो, इनफाइनाइट स्लाइस कट करो, और उन सभी को जोड़ना है हमें ऐसे, dx 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 ऐसे लेंथ लेके और y हाइट ले लेके और सभी को जोड़ देना है। ये इंटीग्रेशन अपने आप ऑटोमेटिकली जोड़ेगा, साइन के साथ जोड़ेगा। अगर ये ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस में गया है तो नेगेटिव वाले को घटाएगा ऑटोमेटिकली, पॉजिटिव वाले को जोड़ेगा ऑटोमेटिकली। ये इंटीग्रेशन टूल की खास बात है। तो आप y dx को अगर इंटीग्रेट कर दें, कहां से कहां के बीच में, आपने बोला था xi से लेके xf के बीच में, ये लिमिट भी आप यहां पुट कर दीजिए, xi टू xf। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये क्या बन गया, आपका टोटल एरिया निकल आएगा। अब y की वैल्यू फंक्शनल फॉर्म में है x के, तो रख दो यहाँ पे, इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। इंटीग्रेशन इक्वल्स टू, मैं यहाँ में लिखूं, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, एक्स आई से लेके हम लोग लिखेंगे एक्स फाइनल, और y की जगह क्या लिख देंगे, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x दिया होगा कुछ, राइट, 2x स्क्वायर समथिंग समथिंग इनटू dx। तो ये क्या आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व। ये क्या बात मेरी समझ में आ चुकी है, क्या ये बात आप क्लियर कर चुके हैं? और इसमें यहाँ पे जो लिखोगे बगल में, वो लिखना पड़ेगा यूनिट ऑफ y इंटू यूनिट ऑफ x, ये मस्ट है। यहाँ लिखना पड़ेगा यूनिट ऑफ y मल्टीप्लाइड बाई यूनिट ऑफ x। क्या मेरी ये बात बिल्कुल क्लियर पहुंच चुकी है आप तक? इंटीग्रेशन हमें आना चाहिए। अब हम कल ग्राफ्स देखेंगे, क्या क्या देखने वाले हैं, लेट मी डिस्कस। एक बार मैं आपसे बात कर लेता हूं कि मैं क्या क्या ग्राफ कल बताने वाला हूं। तो हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं किस किस के बीच में, काइनेमेटिक्स ग्राफ की अगर मैं बात करूं, काइनेमेटिक्स, दिखने में सुंदर नहीं लग रहा, ठीक है ना। तो मैं बात करने वाला हूं काइनेमेटिक्स ग्राफ। काइनेमेटिक्स ग्राफ, तो इसमें मैं क्या क्या बताने वाला हूं आपको काइनेमेटिक्स ग्राफ में। तो पहला, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट, किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करने वाला हूं ये बता देता हूं। एक्सेलरेशन टाइम के बीच एक ग्राफ प्लॉट करूंगा पहला, दूसरा मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा वेलोसिटी टाइम के बीच में, और तीसरा ग्राफ प्लॉट करूंगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। ये तीन ग्राफ की स्टडी हमें करनी है। एक्सेलरेशन टाइम के ग्राफ से हमें दो चीजें मिलेंगी, द टू थिंग्स वी विल गेट, वन वी विल गेट एरिया, ठीक है ना, इस एरिया से हमें मिलेगा वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी, एरिया से हमें क्या मिलेगा, इस ग्राफ के एरिया से चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। दूसरा, मैं वेलोसिटी टाइम का ग्राफ प्लॉट करूंगा, एक ही चीज मिलती है इससे, वेलोसिटी टाइम के ग्राफ से दो चीजें मिलती हैं, राइट, वेलोसिटी टाइम के ग्राफ से हमें दो चीजें मिलती हैं। अगर इसका हम एरिया निकालें, ठीक है, इसका एरिया निकालें, तो हमें मिलता है क्या, वेलोसिटी और टाइम का एरिया जो निकलता है उससे निकलता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकलता है। और अगर मैं इसका क्या निकाल दूं, स्लोप निकाल दूं, किसी पॉइंट पर निकाल दूं स्लोप, तो उससे मुझे मिल जाता है एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इस जो ग्राफ है, लास्ट ग्राफ, इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकाल दूं, एरिया से कुछ नहीं मिलता, एरिया से इससे कुछ नहीं मिलता, अगर स्लोप निकाल दे तो वेलोसिटी मिलता है। ये हमें हमारा पर्पस था बताने का। ये पूरा का पूरा जो
स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने। मेरा पर्पस जो पूरा का पूरा ये चैप्टर, ये स्लोप, ये फलाना ढमकाना, इस सब बताने का वो था, वो यही था कि इससे मिलता क्या है। तो इससे मिलता है हमें वेलोसिटी अंडर डिफरेंट कंडीशंस। वो आपसे जस्ट सिंपल क्वेश्चन कर लेगा ग्राफ से बेस्ड, और आप बैठे रह जाएंगे एग्जाम में अगर आपने बेसिक चीजें नहीं पढ़ी हैं। अब आगे चल के आपको चौथा ग्राफ जो मिलेगा वो काइनेमेटिक्स का नहीं होगा, ठीक है ना, तो वो होगा फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना। चौथा ग्राफ आपको ये मिलेगा। पांचवा ग्राफ आपको मिलेगा फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है ना। छठवां ग्राफ आपको मिलेगा फोर्स वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ, ठीक है ना। इस टाइप से आपको ग्राफ मिलेंगे। फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ का जो आप अगर एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया बताएगा आपको इम्पल्स, राइट। और ये जो इम्पल्स होता है यही चेंज इन मोमेंटम बताता है, चेंज इन मोमेंटम बताता है। आगे चल के मैं सब बातें आपसे करूंगा। हाँ, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया है, ये एरिया आपको बताता है वर्क डन, वर्क डन। और जो फोर्स वर्सेस वेलोसिटी है, इसका जो एरिया है, फोर्स वर्सेस वेलोसिटी, इसका एरिया क्या बताता है आपको? पावर बताता है। ऐसे ही सातवीं चीज टॉर्क वर्सेस ओमेगा, टॉर्क, टॉर्क वर्सेस ओमेगा। ओमेगा क्या कहलाता है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। इसका जो एरिया है वो आपको क्या बताएगा? इसका एरिया आपको क्या बताएगा? ये ए आर ई, ठीक है। एरिया क्या बताएगा आपको? ये बताएगा, क्या बताएगा आपको? ये भी पावर बताएगा, सेम चीज पावर बताएगी, ठीक है ना। ये भी क्या बताएगा आपको? पावर बताएगा। भाई फोर्स और वेलोसिटी के ग्राफ को अगर हम स्केल करें तो सेम आएगा, राइट। तो पावर ये भी बताएगा, ये भी पावर बताएगा। ये काइनेमेटिक्स के ग्राफ केवल 3 है, ये डायनेमिक्स के ग्राफ कहलाएंगे, ये डायनेमिक्स के कहलाएंगे। मैं आगे इनको डिस्कस करूंगा, बट स्लोप और एरिया के कॉन्सेप्ट तो वही लग रहे हैं। और इससे रिलेटेड भर भर के क्वेश्चन, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं और आप बहुत आसानी से उड़ा देंगे, बहुत आराम से, बहुत सस्ते क्वेश्चन आएंगे। तो होप आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी और मैं यहीं पे आज की क्लास को फिनिश कर रहा हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ। कोई डाउट हो, किसी कोई प्रश्न हो, पूछ सकते हो। यस सर। सर इसमें ये काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स में मेन डिफरेंस क्या है? देखो, जब भी फोर्स वर्ड आ जाए, फोर्स, फोर्स, टॉर्क, टॉर्क में भी फोर्स होता है, ये सब डायनेमिक्स है। तो डायनेमिक्स में क्या करते हैं, जो मोशन करा रहा होता है उसको भी हम ले लेते हैं। तो फोर्स बेसिकली मोशन कराने के पीछे की एक वजह होती है, राइट। मोशन अगर हो रहा है तो वो फोर्स एक वजह है कहीं ना कहीं, तो उस वजह को ले लेते हैं, दैट इज डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? उस वजह को नहीं लेते, तो पहले स्टडी यहाँ आसान वाली करते हैं, सो दैट आसान वाली स्टडी के बाद थोड़ा सा टफ स्टडी हो। तो काइनेमेटिक्स का पूरे का यूज होता है डायनेमिक्स में। तो हम क्या है, पढ़ाई जो स्टडी हम लोग करते हैं, व्हेनेवर वी स्टडी, तो हम पहले सबसे आसान वाला केस देखते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा रियलिटी और ऐड करते हैं तो थोड़ा टफ बनता है, फिर और रियलिटी ऐड करते हैं और टफ बनता है। ऐसे करके स्टडी को आसान बनाने के लिए हमने काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में तोड़ा, सो दैट पहले हम उन चीजों को पढ़ लें जिससे स्टडी आसान हो, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। क्या ये बात पकड़ पाए, समझ पाए? यस सर। सर एक डाउट हो रहा है, मतलब पिछले वाले पेज में एरिया निकालते हैं तो, हाँ सर, एरिया निकालते हैं इसमें तो सर, एक तो है जैसे अपने स्ट्रिप एक्स एक्सिस में डाली तो अपन वाई में भी डाल सकते हैं, तो कब कैसे करना है वो? एरिया अंडर द एक्स डी कर्व वाई कभी पूछे, इन जनरल मान लीजिए आपसे एरिया अंडर द कर्व पूछे, तो आप इन जनरल जो होता है वो एक्स एक्सिस में ही स्ट्रिप ऐसे डालते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप ही डालते हैं। आपसे कभी ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वाला कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना। और प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे, अभी आगे चल के जब मैं ग्राफ बताऊंगा, तो जैसे ए टी, एरिया इनटू टाइम, इसका ग्राफ बनेगा। एटी का एरिया बताता है चेंज इन वेलोसिटी, तो इसका एरिया मुझे निकालना पड़ेगा। तो एरिया, एक्सेलरेशन को मैं रखूंगा वाई एक्सिस में, टाइम को रखूंगा एक्स एक्सिस में। एक्सेलरेशन और टाइम इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो चेंज इन वेलोसिटी निकलेगी। तो मुझे मजबूरन एक्सिस ही मैंने ऐसी चूज करी है कि मजबूरन यही एरिया निकालना पड़ेगा। आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप वर्टिकल को इस स्ट्रिप को यहाँ डालिए, राइट। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आता है चेंज इन स्ट्रिप वाला। स्ट्रिप को, हाँ हाँ यदि हम स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल ले सर लेंगे वाई के रिस्पेक्ट में इसमें इंटीग्रेट करने को नहीं देगा, है ना? नहीं, कभी ऐसा नहीं होता, कभी नहीं है ऐसा, ठीक है। मैथमेटिक्स में थ्योरेटिकली आपसे पूछ सकता है, कहेगा स्ट्रिप चेंज करिए। हाँ पूछिए। हाँ हाँ बताइए।
सर यदि हम लोग स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो 0 से y हाँ, मैक्सिमम वैल्यू तक चलेगा, जैसे x आप ऐसे तो बोलते हैं कि मेरे सर ख्याल से हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, जैसे यहाँ पे ले लेते तो ऐसे चलते, बट उसके लिए x को y का फंक्शन होना पड़ेगा, सॉरी x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y होना पड़ेगा, x इज इक्वल्स नो टू फंक्शन प्रॉब्लम ऑफ सर, y वो होना तो हम पड़ेगा। लोग चेंज हाँ, कर लेंगे ना हम लोग, नहीं वो dx नहीं हो चेंज जाएगा, होता, dy नहीं हो होता जाएगा। चेंज। जैसे मान लो y इक्वल्स टू दिया है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, अब इसको x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y करके प्रॉब्लम हो दिखाओ, जाती है। नहीं होगा, कर ही नहीं यस पाएंगे आप। और ये मैथमेटिक्स में आएगा, आप फिजिक्स साइंस इधर मैकेनिक्स के लिए आप बिल्कुल वो रहिए, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, हमेशा वर्टिकल स्ट्रिप ही लेना है। मैथमेटिक्स में आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, वो उस टाइप के डिजाइन्ड क्वेश्चन ही होंगे, वो कहेगा चेंज ऑफ स्ट्रिप करिए, इंटीग्रेशन करने में कई बार वर्टिकल स्ट्रिप से काम नहीं चलेगा तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप करना पड़ेगा। तो मैथ में यस विकास सर, सर उसमें आपको बहुत डिटेल में डिस्कस इक्वेशंस करेंगे। इक्वेशंस हम लोगों का उसमें छोटा रहेगा, जैसे y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर लाइक दैट, ऐसे हाँ, करके, तो हम लोग उसमें वो x जो स्क्वायर भी डिजाइन ले किए सकते जाएंगे हैं। क्वेश्चन ना चेंज इन स्ट्रिप वाले, वो मैथमेटिक्स के हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन किए जाएंगे। मैकेनिक्स में कहीं ऐसा नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूं कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में वो कुछ कर रहा है, ठीक है, हमेशा ओके वर्टिकल स्ट्रिप होगा, वर्टिकली ही एरिया हमें निकालना है, ठीक है। क्या ये बात समझ पाए? यस सर, गुड। ओके, और कोई प्रश्न, किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं आप लोग। सर वो थोड़ा कैमरा का था कि उसमें थोड़ा ओपनिंग का फील आ जाता है, उस हिसाब से आप चाहते हैं कि थोड़ा फेस मतलब दिखे? सब सर मतलब पूरे टाइम पे क्या एक्टिव रहते हैं उस टाइम पे, क्या अच्छा से समझ आ रहा है, बीच में अच्छा फिर अच्छा, थोड़ा हाँ हाँ लूजनेस हाँ, नहीं, उससे